Good afternoon, everyone. Thank you for joining this session. This live webinar is about India's only solar with savings guarantee and money back promise. Um, Before we start, I just want to sort of set the webinar agenda a little bit. We're going to speak about what is the current market realities today, what are the issues that customers usually face before they go on their solar journey. What do we really mean by a savings guarantee solar with money back promise? So we'll delve into that a little bit. Uh, some of the critical things that you need to keep in mind before you go solar, and how not to compromise your safety, your family's safety during this journey, and of course, uh, cost pricing and the right way to sort of finance your solar. Uh, Everyone today, of course, knows that solar is the smart choice, solar is the right choice for the environment. But what we have to keep in mind that while solar is the sahi choice, एक सही partner क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, right? Uh, we will get into that sahi solar क्या है, sahi partner क्या है, a little bit about Solar Square before we go into that conversation. We are a company. Uh, we have been existing for the last 10 years. We have over 130 megawatt of rooftop solar experience. We are India's number one home solar company. We are a full stack company, which means that we do not have any middlemen involved. So right from your installation to licensing to ensuring that your subsidy comes on time, your after sales, everything, we would uh, handhold you to to the entirety of your solar journey. There is no middleman, there is no third party involved. If you Google us right now, we have over 4,000 Google reviews. Most of them are over 4.8 ratings, right? Uh, Coming to our numbers, we have solarized over 15,000 homes and, of course, 150 plus housing societies. And a little fun fact about us that one in every three homes, especially in cities like Pune, Bangalore, Nagpur, Bhopal, Indore, and Jabalpur, they choose Solar Square every time they want to sort of go solar. And we have been solarizing one home per hour. Uh, so without any ado, I would like to introduce Neeraj Jain on the panel. Neeraj is the co-founder and director of Solar Square. He comes with decades of experience in solar. He is very, very passionate about environment and conservation. And today he's gonna sort of, tell us about this product that we have launched, solar with savings guarantee, money back promise, and how are we sort of going over and above to ensure that our customers have absolute peace of mind? Neeraj, over to you. थैंक यू स्नेहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को थैंक यू, आपने सैटरडे को आफ्टरनून में अपना अपना टाइम निकाला है सोलर जानने के लिए। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सर पे, वी विल कीप इट इंटरेस्टिंग एंड प्रॉब्ली सिर्फ 5% टाइम ही सोलर स्क्वायर हमारी कंपनी के बारे में बोलेंगे। आज का इंटेंट बहुत ही सिंपल है, अच्छा सोलर क्या है, क्या गड़बड़े हैं मार्केट में एंड क्या स्ट्रगल करते हैं कंज्यूमर्स इन चॉइसेस में, उसके आखिर में क्या इकोनॉमिक्स है, क्या कॉस्ट है। हमारी टीम है यहाँ पे सारा आंसर करने के लिए, बट बहुत सिंपल सा एजेंडा रखेंगे। बिल्कुल भी सोलर स्क्वायर की मार्केटिंग पिच नहीं होगी इस चीज में। एंड अगेन थैंक यू फॉर टाइम। सीधा डाइव इन Right, करते हैं इस right, चीज में। right. Neeraj, before we begin, like I mentioned on the agenda, कि अभी जो solar market के realities है, I know we have done a study as well. If you could sort of delve into the eye-opening sort of findings that we saw with the study. राइट। सो मैं खुद के बारे में क्विक बैकग्राउंड दे दूं। मैंने इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे से की है, उसके बाद में मैंने इंटरनेशनली फाइनेंस में काम किया। पिछले 10 साल से मैं सोलर स्क्वायर बना रहा हूँ एंड एक सबसे बड़ा स्ट्रगल जो रहा है इस जर्नी में कि क्योंकि नई इंडस्ट्री है सोलर, अवेयरनेस कम है एंड जहां पे अवेयरनेस कम होती है मैं भी एज अ कंज्यूमर शायद से लोअर कॉस्ट ही चूज करूं। अभी एक सोलर पावर प्लांट इज अ पावर प्लांट। आप पहली बार
मतलब मैनकाइंड की हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि इंडिविजुअल घर पावर प्लांट ओन कर रहे हैं, एंड इसका डाउनसाइड ऐसा आया है कि इंजीनियरिंग पे उतना फोकस नहीं गया, और आपने एवरेज घर ने अगर 2.5 लाख 3 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, 50% कस्टमर्स, 15%, 50% सिस्टम्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और ये रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए की थी। इंडिया की जो सबसे बड़ी थिंक टैंक है सोलर के लिए, CEEW, पब्लिक है ये रिपोर्ट। एंड पीवी डायग्नोस्टिक्स भी IIT बॉम्बे से ही स्टार्टअप है, 10 साल से वो लोग भी रिसर्च कर रहे हैं इस स्पेस में। बहुत ही स्ट्रेसफुल साइन है ये। एंड आपको पूरे कॉम्बिनेशन में देखा, मुझे ना लाइक हमें फर्क नहीं पड़ता कि कस्टमर हमारे साथ सोलर जाए किसी के साथ में जाए। आई थिंक प्लैनेट को बचाने के लिए लोगों ने सोलर जाना चाहिए। एंड जब ऐसा कस्टमर एक्सपीरियंस इतना खराब रहेगा कि यार हमने पैसे लगा दिए लेकिन सेविंग्स नहीं आई, उल्टा लाइबिलिटी सर पे आ गई, तो वो इंडिविजुअल के लिए भी और कम्युनिटी के लिए भी बहुत ही खराब है। तो ये एक बहुत ही रियल फैक्ट हमें माइंड में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सोलर में एक ही है, आपने सारी इन्वेस्टमेंट पहले लगा दी और उसके बाद में आप सेविंग्स के लिए वेट कर रहे हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। अपन आगे चलते हैं कि क्यों होता है कि मतलब 50% सिस्टम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और अभी तो फिर भी इंडिया में लगभग सिर्फ 7 लाख घर सोलर गए हैं। अगले 5 से 7 साल में लगभग 1 से 2 करोड़ घर सोलर जाएंगे, तब ये चीज और न्यूज में आएगी सामने। बिफोर मैं ये टेक्निकल में जाऊं, अगर यहाँ पे मैंने देखा है कुछ लोग गुजरात से हैं, कुछ लोग राजस्थान से भी हैं यहाँ पे। आप लोग ने तो एक्चुअली हर साल आपने देखा होगा कि जैसी बारिशें आती हैं तो सोलर उड़ने लगता है छतों से। एंड बहुत ही रियल रिस्क है, बहुत ही पुअर क्वालिटी इंजीनियरिंग है। सो बहुत ही बेसिक रीजंस जो है जिसके जैसे अंडर परफॉर्म करते हैं। स्नेहा, आप वो चैट मेरे लिए बंद कर दोगे क्या? थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग है। थैंक यू। सो एक बहुत ही सिंपल चीज, ये टेक्नोलॉजी पहले इंडिया में नहीं आई, इंडिया में रिसेंटली आई सोलर मॉड्यूल्स की टेक्नोलॉजी। जो एक डिफरेंस है इंडिया में वर्सेस यूरोप या अमेरिका में, हमारी कंट्री ज्यादा डस्टी है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इतना हो रहा है, ओवरऑल डस्ट लेवल्स इतने हाई है कि सोलर में मेंटेनेंस लगती ही लगती है। कोई भी इंडस्ट्री अगर सोलर जाती है तो वो हर 15 दिन में कम से कम अपने सोलर प्लांट्स की मेंटेनेंस करती ही करती है। इट इज मैंडेटरी। सोलर स्क्वायर नंबर 3 है इंडिया में इंडस्ट्रीज को सोलर में ले जाने में। मैं आपको बोल सकता हूँ कि हर कस्टमर जहां पे हमने काम किया है, कम से कम 15 दिन में एक बार मेंटेनेंस होता ही होता है, 15 to 30 डेज में करते हैं। इंडिया में रेसिडेंशियल सोलर में कोई भी कंपनी ये मेंटेनेंस का ध्यान नहीं देती, उल्टा वो बोलते हैं सर सो तो सिस्टम डिजाइन ही ऐसा किया है कि आपको मेंटेनेंस नहीं लगेगा, और जो भी लगेगा आप पानी खुद से मार लीजिएगा। अब ये सबसे बड़ा लूपहोल है, क्योंकि कस्टमर के सर पे मेंटेनेंस का स्कोप दे दिया, एंड कल उठ के कुछ भी डैमेज आता है जो कि 100% सर्टेनिटी है कि आएगा। मैं आपको इसका डेटा और देता हूँ। वहां पे आपके जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो आपके इंस्टॉलर हैं, उनको लूपहोल मिल गया। अरे सर वो तो आपको बोला था ना, आप ध्यान देना, वो उसके वजह से खराब हो गया। अब 2.5 लाख की चीज पे आपको हर साल अगर 15-20 हजार का मेंटेनेंस और खर्चा आपको और लगेगा, तो आपका आपका ब्रेक इवन, आपका ROI आएगा ही कैसे? एंड मैं इसको एक बहुत ही सिंपल कंपैरिजन देता हूँ। सोलर स्क्वायर अगर अपना बेस्ट सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर दे, सारे बेस्ट प्रोडक्ट लगा दे, बट उसको अगर मेंटेन ना करे, बेस्ट प्रोडक्ट बट मेंटेन ना करे, 3 महीने के अंदर परफॉर्मेंस 30% से नीचे आ जाएगी बिकॉज ऑफ डस्ट। और क्योंकि ये डस्ट की वजह से अंदर का जो सोलर मॉड्यूल है वो और खराब होता चला जाएगा, 3 से 5 साल में पूरी सोलर सिस्टम खत्म, सत्यानाश। सोलर स्क्वायर का बेस्ट सिस्टम, तो मैं यहाँ पे कोई और कंपनी का कंपैरिजन ही नहीं कर रहे, बेस्ट प्रोडक्ट बट विदाउट मेंटेनेंस सोलर में 3 से 5 साल में खत्म हो जाएगा। तो ये एक तो मेंटेनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेंटेनेंस में जो मॉड्यूल्स की क्लीनिंग है, वहां पे छोटी छोटी बातें हैं। हम लोग अगर पानी से क्लीन करते हैं और उसको अगर पानी को हमने छोड़ दिया, तो वो सॉल्ट जो पानी में होता है, जो नमक होता है, वो नमक धीरे धीरे मॉड्यूल्स पे चिपकने लगता है। इसकी वजह से आप नेक्स्ट जो इशू देख रहे हैं, माइक्रो क्रैक लिखा है, हॉटस्पॉट लिखा है, ये ना सोलर मॉड्यूल के अंदर डैमेज होने लगता है, और ये चीजें आंखों से विजिबल नहीं होती। अच्छा सोलर मॉड्यूल, बुरा सोलर मॉड्यूल ऊपर से देखने से समझ नहीं आता।
क्योंकि ये माइक्रोन लेवल पे होता है। मतलब आपका आप दिस इज हेयर थिन, इवन थिनर देन योर हेयर। सो वो नेकेड आई को विजिबल नहीं है, बट अंदर से डैमेज होता है एंड एक्चुअली जलता है। जो हॉटस्पॉट लिखा गया है, एक्चुअली अंदर से सोलर का मॉड्यूल सड़ रहा है, और ये 1000 वोल्ट पे फायर भी कैच कर सकता है अगर सही से मेंटेन नहीं किया तो। बहुत बहुत क्रूशियल है। आ, आप जैसे केबल केबल डैमेजेस लिखे हैं, केबल प्रोबेबली 5% भी नहीं है सोलर सिस्टम की कॉस्ट का, बट मैं बोल सकता हूँ कि प्रोबेबली 20-25% डैमेज इसकी वजह से आता है। और मैं सबको बताऊंगा कहाँ पे कॉर्नर कट किए जाते हैं। अभी जो हम घर में केबल लगाते हैं, वो तो दीवारों के अंदर से जाती है, उसमें कोई वेदर और क्लाइमेट का एक्सपोजर नहीं है। बट जो हम सोलर के लिए लगाते हैं, वो तो छत पे होती है, वो तो दीवारों से बाहर से आती है। तो ये केबल अलग होती है, ब्रांड भले सेम हो, बट उसका उसकी रेटिंग अलग होती है। हम घर में हमारा जो वोल्टेज है, वो 200 से 400 वोल्ट का कनेक्शन होता है, सिंगल फेज 3 फेज कनेक्शन हम लेते हैं, और वही कितना भारी पड़ता है। सोलर तो 1000 वोल्ट पे चलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे नहीं पता कितने लोग को इस कॉल में पता थी। सोलर में आने के पहले 10 साल पहले ये मुझे तो नहीं पता थी, और मैं अच्छा खासा इंजीनियर हूँ आईआईटी बॉम्बे से, बट ये मुझे भी अवेयरनेस नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज है कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जिसका एंड रिजल्ट यही है कि जो भी आपको सिस्टम परफॉर्मेंस बोली गई कि भाई आपने 3 किलोवाट लिया है और आपको 4000 यूनिट 5000 यूनिट बनेंगे, 40-50 हजार की सेविंग होगी साल की, वो उतनी आती नहीं है। वो 1/3 या हाफ ही आएगी, और उसके बाद आपको खर्चे भी और निकलेंगे। तो फ्यू थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। स्नेहा आगे चलते हैं। करेक्ट, राइट। आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल द ऑडियंस दैट द चैट इज ऑफ राइट नाउ बट द Q&A बटन दैट इज ऑन। तो आपके जितने भी सवाल है यू पुट इट ऑन द Q&A integration and we'll sort of take it from there. सो Yes, मैंने 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 चैट में कुछ कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि सब्सिडी मिलती है क्या। डेफिनेटली सब्सिडी है। सोलर जाने के 1 महीने में सब्सिडी भी मिल जाती है। आप 3 किलोवाट ले या 5 किलोवाट ले, आप इंडिया में जहां भी, अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो मोटा मोटी 3 साल में आपका ब्रेक इवन आएगा। बाकी जगहों पे आपका लगभग 4 से 5 साल के बीच में आना चाहिए। हम ये डिस्कशन के एंड में सारे इकोनॉमिक्स भी कवर करेंगे, बट आई थिंक पहला फोकस है सही सोलर क्या है, क्या गलतियां हो रही हैं, एंड क्यों आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी मैसिवली रिस्क पे है। सो आई थिंक बहुत सिंपल से अगर कवर करें, 30% आपकी सेविंग्स ही कम आ रही है। मतलब जहां पे आपका असेट की रिकवरी आपकी ब्रेक इवन 4 साल में या 5 साल में आनी चाहिए, वही चीज 7 या 8 साल लग जाएगी। बिना मेंटेनेंस के तो गारंटी है कि जैसे आई नो आज के वेबिनार का फोकस है मनी बैक गारंटी, वो सोलर स्क्वायर तो करेगा ही। मैं तो किसी और ने अगर सोलर लगाया है बिना मेंटेनेंस के, हम इतने कॉन्फिडेंट हैं, हम उस पर भी गारंटी देंगे कि आपका डेफिनेटली 3 से 5 साल में पैसा डूबेगा। तो फाइनेंशियल लॉस सिग्निफिकेंट है। जो खर्चे आपको मेंटेनेंस के लगने हैं, सालाना 5, 10, 15 हजार, और ओवर टाइम बढ़ते चले जाते हैं, वो भी आपके सर पे। और यहाँ पे जो एक पार्ट इंपॉर्टेंट है वारंटी रिजेक्शन का। देखिए आपका सोलर मैन्युफैक्चरर ने नहीं लगाया है, ना टाटा ना अडानी ना वारी, ना कोई मैन्युफैक्चरर आके लगा नहीं रहा है। उनके डीलर लगा रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी लगा रहे हैं। आपको वारंटी मैन्युफैक्चरर नहीं देता। आपके ऑर्डर में कॉन्ट्रैक्ट कॉपी में लिख दिया जाएगा बैक टू बैक वारंटी, और जिसमें आप जब डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो 50 लूप होल होते हैं। और फिर correct. कस्टमर फंस गया इंस्टॉलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में कि गलती किसकी है। और कोई भी उसमें अटकना चाहता है। आप अगर ऑनलाइन जाके चेक करेंगे वारंटी क्लेम करना कितना मुश्किल है, आपको तो सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि 10 दिन लगेंगे या 50-60 दिन लगेंगे, वो सर्कल वाला एक डायग्राम बन के आप अटक जाएंगे। सो दैट दोज आर फ्यू थिंग्स जो आपने ध्यान देने हैं। मैं सॉरी अगर मैं आपको डरा रहा हूँ सोलर जाने से, इंटेंट डराना नहीं है, आपने सोलर जाना चाहिए। आई थिंक बस ध्यान वही देना है कि जो 50% लोग फंस रहे हैं, उस कैटेगरी में हमें नहीं आना। सो आगे चलते हैं। नीरज, like you said कि सोलर स्क्वायर तो हम गारंटी दे रहे हैं, बट इफ यू कैन sort of delve into it कि हम कैसे we are protecting the customers investment. श्योर, आगे चलेंगे। सो Yes. हमने हमने एक नहीं नहीं आई थिंक पिछले साइड पे, हमने बहुत ही एक सिंपल चीज की है। ये वो 5% वाला टाइम है जहाँ पे मैं सोलर स्क्वायर के बारे में बोलूंगा।
बट हमने बहुत सिंपल चीज की, हम सोलर के एक्सपर्ट हैं, हमने इतने सालों से सोलर सिस्टम लगाई है, हर एक कंपोनेंट हम लाते हैं, इंस्टॉल हम करते हैं, मेंटेन हम करते हैं, फाइनेंसिंग हम करते हैं। तो सेविंग्स की गारंटी भी हमने देनी चाहिए ना, वो हम वेदर पे कैसे छोड़ सकते हैं, वो हम मैन्युफैक्चरर पे कैसे छोड़ सकते हैं, वो हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर पे डाल के सर थोड़ा बहुत मेंटेनेंस तो आप देख लीजिएगा। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं करते। सोलर स्क्वायर बहुत ही सिंपल सा प्रॉमिस लाया है आपके लिए। ये हम ऑलरेडी 4 साल से कर रहे हैं, बट हमने इसको बहुत अच्छे से कस्टमर फ्रेंडली तरीके से पिछले 1 साल से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट इज आवर गुड जीरो प्रॉमिस, जहां पे जिस दिन आपको हमारी सेल्स टीम आपसे मिलेगी या आप हमसे ऑनलाइन इंटरेक्ट करेंगे, आपको एक कॉस्ट दी जाएगी कि आपका 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम, 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम इतने प्राइस में हम लगाएंगे, सब कुछ हमारे स्कोप में, आप इतने यूनिट की आपकी बिजली बनेगी, जिससे आपकी सेविंग गारंटी हो गई कि आपके अगर 3,000 यूनिट बन रहे हैं, 5,000 यूनिट बन रहे हैं, हर साल अगले 5 साल के लिए हम आपको यूनिट्स भी गारंटी करेंगे। अगर इतने यूनिट नहीं बने, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके 5,000 यूनिट साल के हमने कमिट किए हैं, अगर 4,950 बने, 50 यूनिट हम आपको भर के देंगे। एंड दूसरी चीज, और ये 5 साल तक करेंगे हम लोग, और दूसरी चीज अगर कोई खर्चे आते हैं, पीछे पीछे रहते, हाँ ठीक है, वी विल बी हियर, अगर कुछ भी खर्चे आते हैं कि अरे ये कंपोनेंट खराब हो गया, कितने लोग ने लैपटॉप में सेलफोन में देखा होगा ना, अरे मदरबोर्ड उड़ गया। आई एम श्योर हर किसी ने एक ना एक बार तो ये सफर किया है। कोई मदरबोर्ड कुछ नहीं उड़ता अगर आपने अच्छे से प्रोडक्ट लिया है, मेंटेन किया है उसको। एंड जो भी थोड़े एरर्स आते हैं वो मैन्युफैक्चरर से लड़ने झगड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। सो एज आर कस्टमर आपको मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाना, सारे रिपेयर्स रिप्लेसमेंट हमारे सर पे है। यहाँ पे एक ही चीज है जो हमारे सर पे नहीं है, अगर कोई इंटेंशनली डैमेज करता है तो वो हम कवर नहीं करते हैं। कोई भी खुद की इन्वेस्टमेंट को ऐसे बिगाड़ना नहीं चाहता। बहुत ही थोड़े कस्टमर होते हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो सोलर के मॉडल पे पापड़ सुखाते हैं, मिर्ची सुखाते हैं, बट वो बहुत ही रेयर चीज है। सो कमिंग बैक, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, जो सेविंग्स है वो भी गारंटी की, और नए खर्चे ना आए आपके सर पे वो हमने गारंटी की। तो ये पूरा है। और जो 20% हायर जनरेशन है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। हम किसी और थर्ड पार्टी किसी कंपनी से कंपेयर नहीं कर रहे। मैं तो ये बोलूंगा जो सोलर स्क्वायर का बेस्ट प्रोडक्ट हमने लगाया, बट अगर उसको मेंटेन नहीं किया, वो हम कम से कम 20% हायर जनरेशन कमिट करते हैं विद आवर सर्विसेज, खुद के सोलर सिस्टम से, जो मेंटेन ना हो। एंड ओवर 5 years वी आर विलिंग टू कमिट दैट। एंड यहाँ पे जो 5 साल की भी गारंटी में, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, मैं अभी आंसर कर देता हूँ उस चीज को। 5 साल की भी गारंटी हम सर इसीलिए सिर्फ दे रहे हैं क्योंकि 5 साल में जो भी इंजीनियर्स या लेबर का जो इन्फ्लेशन है, उसकी कॉस्ट अभी पता नहीं है। हम चाहते हैं कि हम ईयर 6 to 10 भी आपका सोलर सिस्टम मेंटेन करें और आपको गारंटीज दें। एंड प्रॉब्ली 2 या 3 साल बाद जब विजिबिलिटी आ जाएगी कि हाँ यार लेबर के खर्चे कितने हैं, उस टाइम पे हम वो भी गारंटी करेंगे। आज क्योंकि इन्फ्लेशन का सिर्फ गेस कर सकते हैं, तो इसीलिए इसी कारण से हमने सिर्फ 5 साल तक के लिए किया है। बट सोलर स्क्वायर वांट्स टू मेंटेन these systems for 20-25 years। सोलर की अच्छी खासी लाइफ 25 साल होती है, और 25 साल बाद भी एक अच्छी सोलर सिस्टम 80% परफॉर्मेंस तो देती ही है। तो अगर आपने सोलर अच्छी कंपनी से लिया है, प्रोडक्ट अच्छा है, मेंटेनेंस अगर पूरा है, तो जिम्मेदारी भी उतने लंबे समय की आनी चाहिए। तो ये हम करते हैं। एज अ कंज्यूमर आपको नहीं सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इन्वर्टर खराब हो गया या कुछ मॉड्यूल डैमेज हो गया या परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, विद गुड जीरो आपको हमें चेज करने की जरूरत ही नहीं है। अरे भैया मेरा मेरे बिजली का बिल बढ़ गया, तुम देखने नहीं आया, आओ एक बार देख के जाओ और ठीक करके जाओ। आपको हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। उल्टा शायद से हम आपके पीछे पड़े कि सर हमको घर पे आने दीजिए, सेविंग जनरेशन कम आ रहा है, क्योंकि हमारे पैसे कट रहे हैं। तो हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले ली, आपको चेंज ही नहीं करना। एंड वी आर दी ओनली वंस इन इंडिया हु डू दैट। एंड ये कमर्शियल और इकोनॉमिक रीजन के अलावा हमारी पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है कि इंडिया सोलर तभी जाएगा जब विश्वास होगा, क्योंकि मिडिल क्लास इंडिया सोलर जा रहा है। और 3 लाख की इन्वेस्टमेंट, 2.5 लाख 3 लाख की इन्वेस्टमेंट, ये तो मारुति जैसी गाड़ी खरीदने जैसी है। और मारुति की गाड़ी पे सेविंग्स नहीं होती है, सोलर में सेविंग्स होती है हर साल, इसलिए जाना चाहिए सोलर।
बट वो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हम वही बनाने निकले हैं हमारी तरफ से। मेरा मोस्टली पिच खत्म हो गया सोलर स्क्वायर के बारे में। विल टैकल टेक्निकल क्वेश्चंस। सो वेरी सिंपल प्रॉमिस, अगर बिजली बनी कम तो पैसे देंगे हम। एंड मुझे कई बार कुछ कुछ कस्टमर्स होते हैं, काफी स्मार्ट होते हैं, वो पूछते हैं, अरे यार तुम 5 साल की गारंटी ले रहे हो, कंपनी बंद हो गई तो क्या करोगे? बोला सर मेरा उसके पास सोल्यूशन नहीं है, बाकी मैं आपको सब बता सकता हूँ कि हम इंडिया के नंबर 1 है, हमारा इतना रेवेन्यू है, इतने हमारे इन्वेस्टर्स हैं। बट अगर आपको कभी हमारी चिंता होती है ना कि हम बंद हो सकते हैं, तो आप तो सोचिए जो लोकल कंपनी है जो सोलर में सिर्फ 1 साल 2 साल के लिए आई है, उस पर तो कोई गारंटी नहीं है। सो हमारे तरफ से जब तक हम सोलर सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं, जिम्मेदारी हमारी है कि बिजली बन रही है, और नहीं बनी तो पैसे हम दे रहे हैं आपको। एंड इसकी ट्रैकिंग भी जो है, आपके कंज्यूमर ऐप पे आपके पास में एक एप्लीकेशन होगा जहां पे डेली बेसिस पे आपकी इतनी बिजली बननी चाहिए थी, आपकी इतनी बिजली बनी है, साल के एंड में सेटलमेंट करेंगे। क्योंकि कभी कभी होता है कि किसी दिन कभी क्लाउड आ गए, कभी थोड़ी ठंड हो गई, कभी धूप ज्यादा हो गई, इसलिए रोज रोज थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आता है। साल के एंड में पूरा एक कमिटमेंट हम मीट करते हैं। आई होप अगर नीरज, कोई भी से अगर कोई भी क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश मुझे स्विच करना है, कोई फीडबैक है, प्लीज देते जाइएगा, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ नहीं, आई थिंक द हिंदी इंग्लिश द मिक्स इज फाइन नीरज, राइट? श्योर। नीरज, ऑफ कोर्स वी हमने बात कर लिया कि हमारा सेविंग्स गारंटी विद मनी बैक प्रॉमिस क्या है, बट व्हाट इट रियली टेक्स फ्रॉम आवर टीम टू डिलीवर this huge guarantee and a promise that we are sort of telling it to the entire of country. या सो मैं 2-3 चीजें मेंटेन करता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि लोकल कंपनीज अगर आपके 5,000 यूनिट बनने वाले हैं, वो आपको 6,000 भी बोल देंगे, और जब सोलर बेचा जा रहा है तो बहुत अच्छी मैच दिखाएंगे। उनका मतलब जेन्युइनली उनका सोलर सस्ता भी होता है, तो सस्ता सोलर भी दिखाएंगे और जनरेशन बहुत ज्यादा दिखाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे नहीं है, वो तो उन्होंने आपके सर पे डाल दी कि मेंटेनेंस आप ही देख लो, ज्यादा तो जरूरत पड़ती नहीं है। तो इकोनॉमिक्स आपको बहुत अच्छी दिखती है, बट ना मेंटेनेंस ना रिप्लेसमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हम। जो पूरी करते हैं, एक भी चीज आपके स्कोप में नहीं है अपार्ट फ्रॉम कि आप डैमेज मत करना सोलर सिस्टम, और हमें हर महीने हर 5 हफ्तों में एक बार घर पे आके मेंटेनेंस करने दीजिएगा। ये पूरी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। हमारी मतलब पूरी इन हाउस टीम है, पैन इंडिया जो मेंटेनेंस टीम है वो हमारे खुद की टीम मेंबर्स होते हैं, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के थ्रू जाते हैं। क्योंकि एक तो सोलर मॉड्यूल 1000 वोल्ट पे रहता है, अगर थोड़ा सा भी मेंटेन करने में अगर चूक हो गई तो डेथ हो सकती है। कैसे हम कस्टमर्स के हाथ में दे सकते हैं? धीरे धीरे अगर उसको सिर्फ पानी मार के छोड़ दिया किसी ने, किसी कोई केमिकल मारते हैं, कोई पोछे की तरह कपड़े से साफ करते हैं, ये सब अगर गलतियां की तो सोलर सिस्टम की लाइफ ही कम हो जाती है। तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम करते हैं। आप सोचिए 45 to 50 60 टाइम्स ऑन एन एवरेज हम आपके घर पर आएंगे 5 साल में मेंटेन करने के लिए, और ये 45 विजिट्स भी जो लिखे गए हैं, ये तो कम से कम है। लाइक आई सेड, हमें 45 बार आना पड़े या 145 बार आना पड़े, जिम्मेदारी हमारी। हम ये नहीं बोल रहे कि भाई हम 45 बार आ गए तो अब इसके आगे जो भी हो परफॉर्मेंस आपके सर पे है। आपको जितने यूनिट्स कमिट किए हैं उसके लाने के लिए अगर हमें कई बार आना पड़ा तो हम आएंगे। क्योंकि क्या होता है, हर जगह मतलब सेम शहर में अलग अलग जगहों पे धूल मिट्टी का प्रेजेंस अलग है। कोई अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहां पे ज्यादा धूल मिट्टी है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पे धूल मिट्टी ज्यादा हो जाती है। ये आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आप टेक्निकल एक्सपर्ट है ही नहीं। हमारी जो टेक्निकल टीम है, लगभग सम ऑफ द टॉप आईआईटीएन इंजीनियरिंग माइंड्स इन सोलर, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी बनाई है, वो रियल टाइम बेसिस पे हर 5-5 सेकंड में आपका सोलर कितना परफॉर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आज धूप कितनी आई है, सोलर सिस्टम की लाइफ कितनी हो गई है, अगर आज मेंटेन हुआ तो परफॉर्मेंस कितना ऊपर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सही से मेंटेन हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजें। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल ना हर कोई बड़े आसानी से बोलता है कि इसमें भी एआई है, उसमें भी एआई है। बट हमने एग्जैक्टली यही टूल्स पिछले 10 साल में बनाए हैं, जहां से हमारे लिए ये आसान है अब मैनेज करना। ये कोई
कल उठ के कोई कंपनी बोले चलो हम भी सोलर लगाएंगे, ये कैपेबिलिटी नहीं है। इसीलिए हम इंडिया के नंबर 1 बने हैं। एंड मैं बहुत ही ऑनेस्टली कहता हूँ, सो मिडिल क्लास इंडिया को 2.5 से 3 लाख की इन्वेस्टमेंट कराना, ये तो टाटा, मारुति, एचडीएफसी का काम है। हम एज ए यंग कंपनी ये कैसे कर पा रहे हैं, एंड हाउ हैव वी बिकम नंबर 1 इन इंडिया, बिकॉज हम परफॉर्म कर पाए। हम सोलर स्क्वायर को एग्जिस्ट करने का कोई रीजन ही नहीं है, ये तो सिर्फ बड़े लोगों ने करना चाहिए था, बड़ी बड़ी कंपनियों ने, टाटा, महिंद्रा, बिरला यही करे। सोलर स्क्वायर क्यों उन सबको पीछे छोड़ पाया? बिकॉज जो वो नहीं करते हैं, जो वो जिम्मेदारी नहीं लेते, वो सिर्फ अपने ब्रांड पे खेलते हैं, हमने उसको बीट किया कि वी विल पुट आवर नेक ऑन द लाइन। अगर सोलर के एक्सपर्ट हम हैं, हमने लगाया, हम मेंटेन कर रहे हैं, सेविंग्स लाने की गारंटी हमारी, उसके पीछे पूरी टेक्नोलॉजी जो बनाई हो बैकएंड में। बट कस्टमर के लिए बहुत ही सिंपल है, जितनी बिजली बोली उतनी बस मेरे को परफॉर्म करके देनी है। कैसे करे पीछे वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दीज आर वेरी डिफिकल्ट थिंग्स टू डू। इसलिए अगेन दिस इज अ ओपन चैलेंज टू द ग्रुप। आप अगर आप हमारे सेल्स टीम से नहीं मिले हैं, व्हेन यू मीट देम इन द नेक्स्ट मंथ और सो, आप पूछिएगा बाकी भी कंपनीज को, बिकॉज ऑन एन एवरेज कस्टमर 2 या 4 कंपनी से मिलते ही है, कि कोई कोई और भी एक भी कंपनी गारंटी देती है कि आपको पता है जवाब क्या मिलेगा? सर हम गारंटी नहीं देते, बस सस्ते तो है ना। और मेरी टीम बोलेगी हाँ सर हल्का सा महंगा हो, बट गारंटी देता हूँ पूरी। तो दोनों तरीके के कस्टमर्स है, दोनों तरीके की कंपनीज हैं। इट इज अप टू अस। हमें लगता है कि हमारा जॉब है कस्टमर्स को कंसल्ट करना, एंड सोलर लेने वाले आवर टीम विल डू अ वेरी गुड जॉब टू टेल यू क्या अच्छा सोलर है, क्या बुरा सोलर है, एंड देन हर किसी की अपनी चॉइस है, अपने रिस्क का असेसमेंट है। आगे चलते हैं इससे। नीरज, आगे जाने से पहले देयर आर टू वेरी रेलेवेंट क्वेश्चंस दैट हैव कम। प्रमोद जी पूछ रहे दैट हाउ विल वी मैनेज आफ्टर 5 years? डू वी हैव ए एएमसी प्लान, समथिंग लाइक दैट? एंड सीमा जी आल्सो हैज अ सिमिलर क्वेश्चन दैट डू वी प्रोवाइड टेक सपोर्ट फॉर 25 years? डू वी प्रोवाइड व्हाट सपोर्ट फॉर? Tech support. टेक I सपोर्ट think फॉर 25 years? आई थिंक दो ही चीज लगती है। हमारा ऐप तो है ही, अगर घर में वाईफाई है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो जनरेशन तो मॉनिटर हो ही जाएगा। आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे मेंटेनेंस वाला है। एंड हमारी कॉस्ट, लेट्स से अगर आपकी 2.5 लाख 3 लाख की इन्वेस्टमेंट है, हमारी ईयर 6 to 10 की कॉस्ट लगभग 30,000 की आती है। हर साल लगभग 5 से 6 हजार की कॉस्ट है। बट क्योंकि अभी इन्फ्लेशन सैलरीज में बहुत ज्यादा आ रहा है पिछले कुछ सालों से, इसलिए हम कमिट नहीं कर रहे हैं। जहां पे कुछ कस्टमर्स, इसलिए हम उसको मार्केट नहीं करते, बट जहां पे कस्टमर्स इंसिस्ट करते हैं कि आप ईयर 6 to 10 के लिए भी हमें पहले से ही चार्ज करो, जिम्मेदारी लो, वो हम लेते हैं अपने। इसमें मोटा मोटी कॉस्ट इतनी आती है। thanks. Moving on. Uh, तो ये हम जो बोले जा रहे that solar maintenance is one of the crucial things for your solar to perform, give its optimal performance for the next 2 decades, right? But क्यों है? Why it is so required to sort of maintain your solar professionally? सोलर सिस्टम इज अ पावर प्लांट। हमारा कोई काम एस्थेटिक्स का नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का नहीं है। सोलर अगर सेविंग्स नहीं देगा तो क्या फायदा? तो आप जो देख रहे हैं ये, मेरी टीम हमेशा मुझे टोकती है कि ये स्लाइड मत दिखाया करो, मैं इंसिस्ट करता हूँ। ये जब आपके घर पे लगता है, आप थोड़ी ना कंट्रोल कर रहे हैं, आपको तो सोलर नीचे से दिखता है। हर घर पे लगभग 6 फीट या 8 फीट की हाइट पे सोलर लगता है, क्योंकि आप अपनी छत खराब नहीं करना चाहते। तो जब वो शेड क्रिएट होता है, उसपे कितने बर्ड्स आके, ये बर्ड ड्रॉपिंग्स, ये एग्जैक्टली यही हाल होता है। और ये 3 से 5 महीनों में ये हाल हो जाता है। अब सोलर सिस्टम चलती है धूप पे, गर्मी पे नहीं, धूप पे। अब वो सनलाइट ही अगर नहीं पहुंचेगी, जहां जहां पे ये कचरा जो पड़ा हुआ है, यहां से सोलर मॉड्यूल अंदर से जलने लगता है विद इन द फर्स्ट आवर। और कैसे होता है कि बाकी सोलर मॉड्यूल जो है वो लगभग 70 डिग्री के टेम्परेचर पे ऑपरेट करेगा अंदर, और जहां पे ये धूप है, आप सोचिए सनलाइट को अंदर जाने के लिए दिक्कत हो रही है ना, तो वो स्ट्रेन जो आ रहा है, वो स्ट्रेन दिखता है टेम्परेचर की तरह। बाकी एरिया पे 110 140 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। तो जब इतना टेम्परेचर डिफरेंस होने लगता है, तो ग्लास टूटता है, अंदर से सेमीकंडक्टर जो होता है सिलिकॉन, वो मेल्ट होने लगता है, जलने लगता है। एंड वेरी वेरी बर्न। ये तो बहुत ही बेसिक है। अभी क्या है, सारा मतलब इंडिया ने यूएस यूरोप से सीखा सोलर लगाना, बट वहां पे उतनी प्रॉब्लम नहीं है।
धूल मिट्टी की। और आप हम देखें वो लोग अपने घर पे कुछ भी प्लम्बिंग या कारपेंटरी का काम होता है वो लोग खुद करते हैं। तो इसलिए वहां पे वो टेंडेंसी है कि लोग खुद से मेंटेन कर रहे हैं सोलर सिस्टम्स। हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है, एंड इसलिए अपने घर में भी हाउस हेल्प होता है, वहां पे नहीं होती। तो ये इंडिया के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रोफेशनल मेंटेनेंस अडॉप्ट करें। और ये कस्टमर्स ने खुद के स्कोप में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब इसको साफ करोगे सिर्फ पानी मारने से साफ नहीं होगा, सिर्फ एक ब्रश यूज करने से साफ नहीं होगा। और जैसे ही आपने खुद से हाथ लगा दिया, मैन्युफैक्चरर क्या बोलता है आप, एंड स्नेहा आई थिंक आफ्टर दिस कॉल जो भी लोग ने ज्वाइन किया ना, वी शुड सेंड देम अ स्क्रीनशॉट। मैन्युफैक्चरर की जो वारंटी डॉक्यूमेंट है ना, उसमें लिखा होता है Yes. कि ग्लास को आपने इन अप्रोप्रिएटली क्लीन किया, वारंटी इज वॉइड। Right. इन Yep. अप्रोप्रिएटली कितना सब्जेक्टिव है, एक बार इन अप्रोप्रिएट 10 बार कैसे करने से। यूज्ड माइल्ड वाटर, वो आपको बोलेंगे आरओ का पानी जो आप पीते हैं उससे भी प्योर पानी से आपको साफ करना है, डिस्टिल्ड वाटर से। मतलब पार्डन मी बट ये तो मक्कारी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने के तरीके हैं, विच मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बोले हमें जरूरत नहीं, आपको सोलर लेना है आप लो, नहीं लेना है मत लो। एंड इसीलिए कंज्यूमर्स और इंस्टॉलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ग्लोबली। दुनिया में कहीं भी मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है, इंस्टॉलर्स और कस्टमर्स को ही लेनी पड़ती है। तो एक तो ये बहुत ही बेसिक चीज है कि सोलर प्लांट का मेंटेनेंस जो है बहुत ही क्रूशियल है। ऊपर जो ग्लास है उसकी भी लाइफ है, किस तरीके से क्लीन करना है, कितने फ्रीक्वेंटली करना है, ये जजमेंट कॉल लेना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको 40 पेज का डॉक्यूमेंट पकड़ा दूं और आप सब समझ जाएंगे, आपका काम ही नहीं है ये। एंड इट इज वेरी इजी फॉर अस, क्या ट्रेन प्रोफेशनल्स आके इसको मेंटेन करके चले जाए, आपको तो सेविंग लानी चाहिए। Correct. Correct. नीरज, अमित जी का एक क्वेश्चन है that हम बोल रहे हैं कि that we are selling our solar little slightly higher cost than other companies. Then why are we giving only 5 years of guarantee and not 25 years? सर 25 साल की गारंटी की अपनी एक कॉस्ट आएगी, लाइक आई सेड हमारे लिए एक ही लिमिटेशन है, इट इज द इन्फ्लेशन कॉस्ट। 25 साल अगर आप कंपनी रन करते हैं या इफ यू आर एम्प्लॉयड समवेयर, आप भी शायद से 25 साल में क्या सैलरीज जाएंगे आप गेस नहीं कर सकते। मुझे प्रोडक्ट की वारंटी देने में कोई गम नहीं है, बट लाइक आई सेड विदाउट मेंटेनेंस कोई गारंटी मीनिंगलेस है। मतलब मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर भी आपको ना 25 साल की गारंटी बोलता है मॉड्यूल पे, आप जब वो डॉक्यूमेंट में घुस के देखेंगे ना, आपको लगेगा अरे यार ये तो इसमें मतलब काफी इफ्स एंड बट्स हैं। जबकि और मैं मैन्युफैक्चरर की दुविधा समझता हूँ, मैन्युफैक्चरर ने आपको अच्छा बेस्ट प्रोडक्ट आपको दे दिया, ठीक है, मैंने भी और किसी भी सोलर कंपनी ने बेस्ट प्रोडक्ट आपकी छत पे लगा भी दिया। आपकी छत पे कितनी बार बर्ड्स आके ऐसा करेंगे, बंदर आ जाएंगे, आपके शहर में पानी की क्वालिटी क्या है, ये कस्टमर को कैसे पता, आप लोग ने कैसे, मतलब लोग चढ़ जाते हैं सोलर मॉड्यूल पे, हाथ से प्रेशर देते हैं। ये ग्लास है और ये वेफर थिन है, ये हेयर थिन है, ये आपका सोलर मॉड्यूल जो अंदर से होता है, ये प्रेशर नहीं झेल सकता, ये मैन्युफैक्चरर्स गारंटी दे ही नहीं पाते। इसलिए इसलिए कहीं भी ना मैन्युफैक्चरर खुद आके नहीं लगाता। आप देखेंगे जो भी बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डीलर बना देते हैं, वो चैनल पार्टनर बना देते हैं। क्यों? कल कुछ गलत हुआ तो चैनल पार्टनर गाली खाएगा। मैन्युफैक्चरर जो है लिस्टेड कंपनियां हैं, इनका ये एकदम अपने इनका गिरबान साफ रखते हैं, क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं है कंट्रोल करना। सो फॉर 5 25 ईयर्स देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व। एंड मुझे नहीं लगता कि मैं अगर आज कुछ भी अंदाजा लगाऊंगा कि 10 साल के बाद में क्या लेबर की कॉस्ट होगी। मैंने अगर आपको आज चार्ज कर दिया और मैंने शायद से अंडर चार्ज किया, बहुत महंगा दूंगा तो आप मुझे पेमेंट नहीं देंगे, और बहुत सस्ता चार्ज करूंगा शायद से 5 साल बाद मेरी कंपनी बंद हो जाए। हमें दोनों सिनेरियो में एग्जिस्ट नहीं करना। आई थिंक जो कस्टमर्स हमें ट्रस्ट कर पाते हैं कि यार इंटेंट सही है, एक एक 5 5 5 5 साल के स्लॉट में अगर हम आपको ये वारंटीज एंड गारंटीज हम रिन्यू करते रहते हैं, ये हमारा बेस्ट प्लान है अभी तक के लिए। मैं भी विश करता हूँ कि काश मैं 25 साल की दे पाता, बट मैं आपको रिवर्स में पूछूंगा, कोई तो आपको 25 दिन की भी नहीं दे रहा है। हम एटलीस्ट आपको यहाँ पे लगभग 2000 दिन की दे रहे हैं, 5 years गारंटी, अपफ्रंट। बाय द वे हम लोग वी डोंट सेल विदाउट दोज वारंटीज, हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, या तो हम बीच का कुछ नहीं देते। हम थोड़े से सोलर्स को थोड़ा एडमेंट लगता है कि यार आप इतने रिजिड कैसे हो, मैं बोल रहा हूँ ना आपको चेंज कर दो, थोड़ा ट्वीक कर दो, बट हमें पता है कल उठ के हमारा ये नाम खराब होगा, क्योंकि कस्टमर बाद में ये नहीं याद रखेगा कि हाँ आपने स्कोप कम लिया था, अरे यार मैंने सोलर स्क्वायर से लिया था। तो वो दैट इज समथिंग दैट वी टेक केयर ऑफ।
बट आई थिंक किसी ने correct. पूछा था कि एटलीस्ट ईयर 6 to 10 आप क्या कॉस्ट रहेगी, दैट आई ओपनली शेयर, मोटा मोटी 30,000 की रहेगी। एंड एनी कस्टमर हु फील्स के यार ठीक है ये मेरे लिए वर्थ है, दैट इज समथिंग दैट वी एनीवेज लॉक इन। Great. Thank you, Neeraj. Moving on. How does Solar Square maintain residential solar plants? सॉरी मैं ये पिछले स्लाइड पे जाएंगे क्या, आई थिंक इवन बिफोर द बर्ड ड्रॉपिंग स्लाइड, इन द बर्ड ड्रॉपिंग, हाँ सो नहीं नहीं नहीं, जस्ट द टाइटल स्लाइड इसमें। सो मैंने तो मैंने मैक्सिमम टाइम तो सिर्फ स्पेंड किया मेंटेनेंस पे, बट वेरी इंपॉर्टेंट ना, यहाँ पे जो कंपोनेंट भी आते हैं, जो सोलर के मॉड्यूल हैं, इन्वर्टर्स हैं, स्टील जो हम प्रोक्योर कर रहे हैं, हर एक कंपोनेंट में कहीं अलग अलग ग्रेड का मटेरियल आता ही आता है। एंड आप जो प्राइस पॉइंट पे बोलेंगे उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, एंड फिर उसकी लाइफ और परफॉर्मेंस भी उसी से लिंक्ड होती है। बट ये टेक्निकल आइटम्स है, ये कस्टमर को तो पता नहीं चलता। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वही सेम सोलर सिस्टम कोई 2 लाख में भी दे रहा है और कोई 2.5 लाख में भी दे रहा है? इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। प्रॉब्ली 5-10% का डिफरेंस समझ में आता है, 20-20% का डिफरेंस जहां पे आता है ना, आपको लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ तो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। सोलर स्क्वायर हर एक कंपोनेंट की सोर्सिंग खुद करता है, सोलर मॉड्यूल हमारे लिए बनते हैं, इन्वर्टर हमारे लिए बनते हैं, हम स्टील भी लेते हैं, ये बाद में कवर होगा। हम लोग हाईएस्ट ग्रेड स्टील लेते हैं, दिखता सिमिलर सा है बट उसकी स्ट्रेंथ 3-3 गुना होती है। तो कौन सा एलॉय यूज करना है स्टील का, ये सारी चीजें तो प्रोक्योरमेंट पूरा हम करते हैं। जो हमारी खुद की वेयरहाउसिंग और डिलीवरी वैन भी होती है, उसका कारण ये है सोलर के मॉड्यूल इतने थिन होते हैं कि जब इंडिया के रोड्स पे वो ट्रांसपोर्ट आप करते हो तो खड्डों में ब्रेकर पे जब झटके लगते हैं, सोलर की मॉड्यूल की वारंटी भी चली जाती है। और यही ये मैन्युफैक्चरर इंस्टॉलर आपस में लड़ लड़ के कस्टमर लूप होल में अटक जाते हैं। ये जिम्मेदारी भी हम लेते हैं, इंस्टॉलेशन भी हमारी टीम करती है, मेंटेनेंस भी हमारी टीम करती है। कोई भी कंपनी आपको सेविंग्स गारंटी ये सारा करे बिना दे नहीं सकती। इसीलिए जो बड़े मैन्युफैक्चरर जिनके चैनल पार्टनर भी बोलते हैं कि हम इन इन 2-3 बड़े ब्रांड से मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कंपनी ये पूरा कंट्रोल नहीं कर रही है। वो अपना मटेरियल दे देते हैं और लोकल कंपनी जो है वो अपना जुगाड़ लगा के कहीं कॉम्प्रोमाइज करके, आपने बोला नहीं भाई मैं तो ना 2.25 लाख में नहीं लूंगा, मेरे को 2.20 में ही चाहिए। आपको क्या लगता है वो चैरिटी करेगा आपके पास में? नहीं, वो कॉर्नर्स कट करेगा, वो अपना मार्जिन तो बनाएगा ही। एंड वहीं पे फिर बोलते हैं कि यार ये सब इतना मार्जिन में कम कॉम्प्रोमाइज करेगा, अपने सेविंग्स गारंटी कहाँ से देंगे? आप सोलर स्क्वायर से बात करेंगे, मैं तो बहुत जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, 1% प्लस माइनस के ऊपर आपको प्राइस डिफरेंस भी नहीं मिलेगा। सोलर स्क्वायर डज नॉट नेगोशिएट। हर साइट पे कुछ ना कुछ डेविएशन होते हैं जहां पे शायद से 1% की प्राइस बदल जाए, बट हम वो जुगाड़ वाला काम ही नहीं करते जहां पे कल उठ के हमें सोचना पड़े कि यार हमने ये कॉम्प्रोमाइज किया था, तो यहाँ पे सेविंग्स गारंटी दे के ना दे, या तो हम देंगे या तो हम काम नहीं करेंगे। बट वो पूरा वैल्यू चेन कंट्रोल करने के बाद ही आपको सेविंग्स गारंटी दी जा सकती है। चलते इसमें आगे। Yes. मैंने लोकल कंपनीज मतलब जो मटेरियल उस टाइम पे सस्ता अवेलेबल है मार्केट में, कौन सी केबल है, कौन सा मॉड्यूल है जो लोएस्ट रेट दे रहा है, जो उधार दे रहा है, माल उधार पे दे रहा है, वो ले लो। दैट इज नॉट समथिंग दैट वी डू। सो कमिंग बैक, जो मेंटेनेंस है विच इज अ वेरी क्रूशियल, क्योंकि सोलर सिस्टम लाइक आई सेड बेस्ट से बेस्ट सोलर सिस्टम लगा लो, सोलर स्क्वायर के बेस्ट सिस्टम लगा लो, बट विदाउट मेंटेनेंस 3 से 5 साल में डेड होगा। तो 5 साल हमारा बिल्ट इन है। हम मतलब 1000 वोल्ट को सेफली हैंडल करके काम करना है। कभी सोलर सिस्टम उड़ ना जाए, क्योंकि आप छतों पे लगा रहे हैं, आपकी फैमिली वहां पे रह रही है, उसकी जिम्मेदारी हमारे सर पे, उसको भी थोड़ा आगे कवर करेंगे। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के थ्रू मेंटेनेंस हो रहा है, एंड ये मैन्युफैक्चरर लिख के देते हैं, बट लोकल कंपनीज इंस्टॉलर्स ये कस्टमर को एडुकेट नहीं करते। क्योंकि फाइनली मतलब आपने गूगल पे थोड़ा सर्च किया, यूट्यूब पे किया, आपने 4 कंपनी से बात की, उसके बियॉन्ड आप कहाँ पीएचडी करने चले जाएंगे? तो ये अभी क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, बाकी सारे इंडस्ट्रीज आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ रेगुलेशन होते हैं क्वालिटी में। सोलर में भी आएगा, आज नहीं है। आज तो इंडिया बोल रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं सोलर लगाओ सोलर लगाओ, बट बैकग्राउंड में उन्हीं स्ट्रेस आता है कि ये क्वालिटी कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। अभी एक इससे अनरिलेटेड सा है, हमें गवर्नमेंट सब्सिडी लेने के लिए एक सडन नॉर्म है गवर्नमेंट का कि आपको इंडिया के बने हुए सोलर सेल और मॉड्यूल यूज Mm. करने पड़ेंगे। पैसे बचाने के लिए लोग चाइनीज प्रोडक्ट यूज करके इंडिया का लेबल लगा के बेच रहे हैं। एंड अभी तो गवर्नमेंट ने
वो स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया नहीं कि कस्टमर की सब्सिडी कैंसिल कर दे। अभी वो सिर्फ कंपनी को पिनलाइज करने जा रहे हैं, बट 6 महीने में, 1 साल में वो कस्टमर को ही बाद में गिल्टी होल्ड करेंगे कि यार आपने क्यों नहीं पूछा, आपने क्यों नहीं वारंटीज ली। तो ये बहुत ही कॉर्नर्स कट हो रहे हैं। बाकी हमारी तरफ से ऑन द मेंटेनेंस पार्ट 5 इयर्स, जितनी भी विजिट लगे आपके घर पे, कितना भी डाउन टाइम है हमारे सर पे, एंड रियल टाइम मॉनिटर हम आपका कर रहे हैं, सो दैट कहीं भी अगर डेविएशन आता है हम खुद से आगे बढ़ के पहुंचेंगे करेक्टिव मेंटेनेंस के लिए, एंड दैट अलाउज अस टू कमिट दैट परफॉर्मेंस टू योर। हम ऐसा भी नहीं है कि हमने 5,000 यूनिट बोले तो सर 2-5% का तो एरर चलता है ना। अगर हमने 5,000 बोले और 4,990 आए, हम वो 10 यूनिट का भी पेमेंट करेंगे। चलते हैं इसमें आगे। करेक्ट। ये तो हो गई मेंटेनेंस एंड व्हाट वी सॉर्ट ऑफ डिलीवर, बट एक और एंगल जो है दैट पीपल मिस while going solar is of course the angle of safety. Neeraj, in your experience, what have you seen when it comes to safety and solar? आई थिंक दे गो हैंड इन हैंड स्नेहा। अगर लंबा चलना है, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारी फैमिलीज रही। अभी तक सोलर क्या होता था इंडिया में, बड़े बड़े नो डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान में लगाते थे, इंडस्ट्रीज के यहाँ पे लगाते थे। पहली बार ये कंज्यूमर प्रोडक्ट बन रहा है, एंड बाकी हम जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदते हैं, एसी, फ्रिज, गाड़ी, ये सब फैक्ट्री में बनते हैं। सोलर एक अकेला ऐसा कंज्यूमर प्रोडक्ट है जो 50 से 100 कंपोनेंट कंज्यूमर के घर पे इंजीनियर हो रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं। तो बहुत ही एरर प्रोन है ये चीज, एंड इसका इम्पैक्ट ये आता है, सोलर मॉड्यूल उड़ गया, आपके गाड़ी पे गिरा, आपके फैमिली के सर पे गिरा, इट इज सो सो स्कैरी। एक थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी ना कभी कभी आपको डरा देती है। हमारा वो सिचुएशन हो गया है, बिकॉज वी नो व्हाट इज रॉन्ग। हम स्ट्रेस में थे। आई थिंक नेक्स्ट जो स्लाइड है स्नेहा, दैट विल बी Yes, वेरी टेलिंग। I'll आई just थिंक play हम the 10 सेकंड video for लेंगे, the. एंड हम 10 सेकंड लेंगे, आप प्लीज ये देखिएगा, एंड ऑल रिएक्शंस आर वेलकम। सर तो वॉल्यूम कर दीजिएगा आप तो। Yes. आई जस्ट होप कोई उस छत के नीचे नहीं खड़ा था। एंड ये बहुत रियलिटी है ये। देखिए मतलब हम, मैंने और मेरी टीम ने सब छोड़ के हम ये सोलर की इंडस्ट्री में जो आए, अपॉर्चुनिटी भी बड़ी थी, बट हमारी टीम को एक मिशन भी है कि क्लाइमेट चेंज में हमें कंट्रीब्यूट करना है। और क्लाइमेट चेंज सोलर महंगा करने से तो फाइट नहीं होगा। सो क्लाइमेट चेंज अफोर्डेबल होना पड़ेगा, तभी हम फाइट कर पाएंगे उसके अगेंस्ट। तो सोलर को अफोर्डेबल तो कराना ही है, बट अफोर्डेबल के नाम पे मक्कारी नहीं होनी चाहिए। कौन से कॉर्नर्स कट करने हैं, हमें रोल्स रॉयस नहीं बनानी है, हमें कौन सा वो सोलर मॉडल के नीचे रहना है और खाना बनाना है। फाइनली उसने अपनी सेविंग्स दी और लंबा टिकना चाहिए। वो टोयोटा जैसा तो चले, मारुति जैसा जैसा चले, कॉम्प्रोमाइज ना हो। और ये कंज्यूमर्स को आई थिंक अवेयरनेस अब बढ़ रही है। ये जो भी स्टील का काम होता है घरों पे, ये कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं आता। सोलर मॉड्यूल और इन्वर्टर तो फिर भी बड़े फैक्ट्री में बन के आते हैं आपके घर पे। ये सारा जो स्टील का काम होता है, ये पूरी इंजीनियरिंग ना दिहाड़ी लेबर आके छत पे करके जाता है लोगों के। तो नो डिसरिस्पेक्ट टू देयर इनकम, बट डेफिनेटली आप 2.5 लाख की गाड़ी तो किसी लेबर ने इंजीनियर की है, वो तो आप नहीं लेते हैं। फॉर अ सेम क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंजीनियरिंग पावर प्लांट है, हम कैसे लेबर के इंजीनियरिंग में डिपेंड कर सकते हैं। बट दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। आई एम श्योर अगर कुछ लोग यहाँ पे राजस्थान या गुजरात से हैं स्पेशली, क्योंकि वहां पे काफी सोलर लग चुका है ऑलरेडी, अगर आपने देखा है या सुना है कि आपके नेबरहुड में या आपके आसपास में कहीं पे किसी ने उड़ते हुए सोलर मॉड्यूल्स देखे, एक्सपीरियंस किए, प्लीज आप थम्स अप या कहीं पे कमेंट कीजिएगा। दिस इज अ वेरी रियल थिंग इन द इंडस्ट्री। और अभी तो ना शहरों के बीच में लग रहा है, रोड्स के मेन रोड्स के बगल में लग रहा है। इमेजिन दिस, आप ड्राइव कर रहे हो और किसी का सोलर उड़ता है। वेरी वेरी पुअर। और मतलब कौन सा स्टील ले रहे हैं, कैसे उसको वेल्ड करना है, ये सारी इंजीनियरिंग होती नहीं है। किसी ने आपको सोलर बेचा 5 किलोवाट का 3-3.5 लाख में, वो सारा माल घर पे भेज देंगे, लेबर आएगी, लेबर आपकी छत देखेगी लेफ्ट राइट,
वहीं पे वो पाइप काटना शुरू करेंगे, होल ड्रिल करेंगे, वहीं वेल्ड करेंगे। वो 400-500 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला बंदा आपके घर पे ये 3 लाख 5 लाख का प्रोडक्ट इंजीनियर कर रहा है। बहुत ही अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री, समथिंग टू बी वेरी वॉरी ऑफ। आई थिंक मॉड्यूलर इन्वर्टर से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी इंडिया में फिलहाल स्ट्रक्चर, बिकॉज ये बिल्कुल ही रेगुलेटेड नहीं है अभी। Correct, correct. Neeraj, so then what do we do? How do we ensure that abhi the cyclone and storms they are a very regular event in our country at this point. So हम क्या करते हैं to ensure that we do not uh, cut corners when it comes to safety of our families? या या आई थिंक लाइक ऐसे जो मतलब कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ना करे, इसलिए हमने बहुत ही सिंपल सा किया, अच्छा बुरा की कंपैरिजन सिंपल कर दी। हमने साइक्लोन प्रूफ स्ट्रक्चर बनाए, उनको सर्टिफाई कराया कि क्या है, शायद से 25 साल में एक ही बार आए। जैसे मैं बॉम्बे में रहता हूँ, यहाँ पे कभी साइक्लोन होते था वो सब ना, हमें लगता था उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में ईस्ट कोस्ट पे ये सारी चीजें आती हैं। बट अभी हर साल एक या दो साइक्लोन्स वेस्ट कोस्ट पे भी आते हैं। ये हर शहर में क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कभी हीट ज्यादा, कभी ठंड ज्यादा, कभी बारिश ज्यादा, कभी साइक्लोन ज्यादा। जो भी गवर्नमेंट ने कोड बनाए थे कि भाई इतनी इतनी विंड आती है, इतना साइक्लोन का एरिया, ये सारे नॉर्म्स बदल रहे हैं। तो हमें आज जो सोलर लगा रहे हैं वो अगले 25 साल के लिए सेफ रहे, उसके लिए बेट आज से लेना है। मेरे लिए, हमारे लिए बहुत आसान है ये बोलना कि अभी तो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से हमने बना के लगा दिया, बट 25 साल तो वो सोलर नहीं चलेगा। तो हमने साइक्लोन प्रूफ स्ट्रक्चर बनाए। वी आर दी ओनली कंपनी टू गेट इट सर्टिफाइड। हमने आईआईटी बॉम्बे सर्टिफिकेशन लिया है। हमारा देख के ना, बिकॉज वी आर नंबर वन इन द कंट्री, बहुत लोग फॉलो करते हैं, हमारा भी साइक्लोन प्रूफ, हमारा भी साइक्लोन प्रूफ। अभी वी डोंट हैव अ वे टू, क्या बोलते हैं, कॉपी कैट्स या इनको फाइट करना, बट विद सोलर स्टिल यू गेट दैट अश्योरेंस कि वो साइक्लोन आया, सोलर में डैमेज आया, हम खुद ठीक करके जाएंगे। 5 साल तक की हमने गारंटी दी है ना। और स्ट्रक्चर की तो गारंटी इज फॉर 10+ years टू टू लास्ट देयर। 25 साल भी नहीं होना चाहिए। जैसे रेगुलेशन से कि आपको 10 ईयर करना है, गवर्नमेंट उतना बोलती है, बट these structures are built to last for a generation। एंड हम लोग जो सिविल इंजीनियरिंग का भी काम करते हैं, दैट इज ऑल वाटर लीकेज प्रूफ। वी इवन गिव यू अ 1 लाख रुपी वाटर प्रूफिंग गारंटी कि Yes. अगर कुछ भी हमारे से होता है वी विल पे यू। दैट इज हाउ कॉन्फिडेंट वी आर। इवन द प्रोडक्ट्स दैट वी यूज, और जो प्रोसेस हम यूज करते हैं, हमारी टीम जो ट्रेंड है, सेम चीज अगर कोई डैम या ब्रिज लीक करता है तो उसमें यूज की जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमारे सारे जो कंपोनेंट्स हैं, सारे प्री फैब्रिकेटेड, सारे कस्टम डिजाइंड है। सो हमारी जब टीम आपसे मिलती है, पहले हमारी सेल्स टीम आपसे मिलेगी, फिर हमारी इंजीनियरिंग टीम घर पे आती है, आपके घर का 3D मॉडल बनता है, आपकी छत का 3D मॉडल बनता है। उस छत के लिए क्या कंपोनेंट है, आपकी बिल्डिंग की हाइट कितनी, आप जिस लोकेशन में, वहां पे कितनी हवा आती है, हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो यूज करके हर एक कंपोनेंट आपके घर के लिए डिजाइन होता है। और यही कंपोनेंट आपके घर पे डिलीवर होता है, सो दैट जो भी हमारी टीम से भी, हमारी टीम के भी जो टेक्नीशियंस हैं, जो इंजीनियर जो आते हैं, वो भी ह्यूमन है। एरर पॉसिबल है उनके लिए भी, हम कितनी भी ट्रेनिंग करें। हाउ इज सोलर स्क्वायर कॉन्फिडेंट टू गिव दीज गारंटीज? हमने वो प्रोडक्ट और प्रोसेस ही डोंकी प्रूफ बनाया, जहां पे मतलब इमेजिन करिए कि एक ट्रायंगल सा होल है, उसमें ट्रायंगल कंपोनेंट जाएगा, अगर स्क्वायर होल है तो उसमें स्क्वायर होल जाएगा। आइकिया की तरह हमने प्रोडक्ट बनाया, जहां पे आज मैं अगर बॉम्बे में बैठा हूं और मेरा लखनऊ में इंस्टॉलेशन हो रहा है, और दिल्ली में हो रहा है, और साउथ में हैदराबाद में, बैंगलोर में हो रहा होगा, हर जगह सेम। तो हमारी, मतलब मजाक में कह रहा हूँ, बट हमारी सारी, मतलब जो भी आईआईटीएंस है हमारी टीम में, सारी इंजीनियरिंग डिग्री हमने ना इसी में लगाई है कि हाउ, कैसे हम वो खुद पहले कॉन्फिडेंस बना पाए कि हम कहीं भी इंडिया में काम कर रहे हैं। आज हम हर घंटे एक सोलर लगा रहे हैं, शायद से ऐसा होगा कि हम 30-50 प्रोजेक्ट एक 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 दिन में, एक घंटे में लगाना शुरू करें। वो क्वालिटी की कंसिस्टेंसी कैसे मिले? तो दैट इज द प्रोसेस दैट वी हैव इनोवेटेड ऑन द प्रोडक्ट। जापानीज मेथोडोलॉजी बोलते हैं पोकायोकी, दैट इज व्हाट वी हैव डन हियर। एंड इसी से हम लोग को कंफर्ट मिलता है कि हम आपको एक गारंटीज दे पाए, इवन एज अ साइक्लोन प्रूफ सिचुएशन। चलते हैं आगे इसमें। एंड मैं माफी चाहूंगा, मैं ना थोड़ा पैशनेट हो जाता हूँ इस चीज के बारे में, बिकॉज स्पेशली
जो सेफ्टी रिस्क क्रिएट हो रही है, जो लोग सोलर नहीं भी जा रहे हैं, आप सोचिए आपके पड़ोसी ने घटिया सोलर लगाया है, वो सोलर मॉड्यूल उड़ के ना आपके घर पे आ सकता है। सो सो आई स्पीक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ पैशन एंड नॉट कि यार सोलर स्केल बेस्ट है या वो है, बट आई जस्ट होप कि पूरे इंडस्ट्री का लेवल ऊपर आए, एंड देयर आर मेनी मोर पीपल लाइक कंज्यूमर्स के पास बहुत अच्छी अच्छी चॉइसेस होनी चाहिए पिक करने के लिए। सो दिस इज आवर रिकॉर्ड ओवर द लास्ट 4 years टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमें 4 साल से हम लोग घरों में सोलर लगा रहे हैं, एंड this is the safety record that we stand by. So no casualty, nothing. जो भी है, मतलब हमारे केस में तो ऐसा हुआ कि पड़ोसी का सोलर उड़ के हमारे कस्टमर के छत पे आ गया, डैमेज हो गया, एंड दोज आर थिंग्स दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ। वहां पे हम गारंटी नहीं लेते बिकॉज हमने वो हमारी गलती नहीं थी, so वो इंश्योरेंस में कवर करते हैं, बट दैट्स इट। Yeah. Neeraj, we'll just move on to the frequently asked questions on rooftop solar. In fact, Q&A में भी काफी questions आ रहा है that कितने किलोवाट का सोलर लेना चाहिए, कितना रूफ स्पेस का रिक्वायरमेंट है. If you can sort of very simplify this math for all of them. बिल्कुल। सो मैथ्स में घुसने के पहले एक बहुत सिंपल सा आंसर, यूरोप में, यूएस में इतना सोलर लग रहा है, उससे ज्यादा धूप तो इंडिया में हर जगह आती है। एक चेरापूंजी छोड़ दीजिए नॉर्थ ईस्ट में, उसके अलावा हर जगह इंडिया में इनफ धूप आती है। सोलर की इकोनॉमिक्स इंडिया में, वर्ल्ड में बेस्ट है इन इंडिया। एंड थोड़ा जो वेरिएशन है धूप का जो होता है अलग अलग शहरों में, कहीं पे दिल्ली में क्योंकि कोहरा आता है, नॉर्थ में लखनऊ में कोहरा आता है, तो वहां पे शायद से आप पर किलोवाट 1250 1300 यूनिट बनेंगे पर किलोवाट। वही चीज अगर आप पुणे या बैंगलोर में जाएंगे तो वो 1450 1500 यूनिट बनते हैं। ये हर शहर के लिए हमारी टीम आपको क्लियरली एजुकेट करेगी क्या पॉसिबल है। और यहाँ पे ना इक्के दुक्के कस्टमर होते हैं जिनके यहाँ पे बहुत हाई परफॉर्मेंस आ जाती है, लोकल कंपनीज वही बोलते हैं, देखिए सर मेरे कुछ क्लाइंट्स का आया है ना, आपको वो उस क्लाइंट की बहुत सेविंग्स आ गई, उससे आपका तो कुछ लेना देना है नहीं, आपके घर पे कितनी आएगी और क्या गारंटी आएगी, आपको वो मांगना है। एंड दैट इज व्हाट वी कमिट। एंड ऑन एन एवरेज पिछले 2 साल में हमने जो भी कमिट किया उसे 13% हायर परफॉर्मेंस आया है। बट क्या है, किसी साल ज्यादा भी आएगा, किसी साल कम भी आएगा, धूप भी थोड़ी आगे पीछे होती है। Hmm. बट ये एक है, तो आपका मोटा मोटी इतना जनरेशन पर किलोवाट आएगा। सोलर आप जैसे डिसाइड करते हैं, आपने शायद से कनेक्शन लिया होगा 10-20 साल पहले अपने घर पे, तभी से आपकी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, और शायद से आने वाले टाइम में और बढ़ेगी, क्योंकि सारे अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिक हो रहे हैं, आज गैस से चलाते हैं, एक एक चीज इलेक्ट्रिक होती चली जाएगी, तो आपका जो सैंक्शन लोड है, आपके बिजली बिल पे 1 किलोवाट 2 किलोवाट लिखा होता है, वो एक तो चेंज कराना होता है, हमें 3 किलोवाट या 5 किलोवाट कराना होता है, उसमें लगभग 15 से 30 दिन लग जाते हैं गवर्नमेंट साइड पे। तो एक ये होता है कि हम क्या सैंक्शन लोड लेंगे, कितना हमारा बिजली का जनरेशन या बिल है, और छत पे जगह कितनी है। हमने देखा है सिर्फ 5% कस्टमर्स के यहाँ पे छत की जगह कम पड़ती है, वरना मोटा मोटी इंडिया में अगर आप 3 से 4 किलोवाट ले रहे हैं, 200-250 स्क्वायर फीट में पूरा सोलर लग जाएगा। और आपने वो, हमारे घर पे छत है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो हमारी सोशल स्पेस है। Hmm. वो इवनिंग की वॉक से लेके, चाय से लेके, फैमिली का गेट टुगेदर हम लोग करते हैं। तो इसलिए वो 6 फीट की स्ट्रक्चर हम लोग लगाते हैं, 8 फीट की स्ट्रक्चर लगाते हैं, जिसके ऊपर सोलर लगता है। सोलर आप उसके नीचे, आपकी एरिया वेस्ट नहीं हुई है। तो मोटा मोटी ये आपका मैथ्स बैठता है। तो एक 4 किलोवाट के लिए लगभग 250-300 स्क्वायर फीट की जगह एट मैक्सिमम हमें लगे। एंड दिस इज द बेसिक मैथ। सो अगर आपने, मतलब जो मैथमेटिक्स है मैं उसको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपका साल का बिल 60,000 आ रहा है और आपकी बिजली 10 रुपए की है, 60,000 डिवाइड बाय 10 इज 6,000 यूनिट्स। तो आपको सोलर उतना लगाना है जो 6,000 यूनिट बनाए। 6,000 यूनिट बनाने के लिए आपको मोटा मोटी 4-4.5 यूनिट के बीच में कहीं पे लगाना पड़ेगा, डिपेंडिंग आप इंडिया में कहाँ पर है। एक बात किसी ने पूछी थी कि क्या सोलर का परफॉर्मेंस हर साल घटता है क्या? दैट इज ट्रू। ये सोलर की इंटरनल फिजिक्स ही है। एंड बेस्ट सोलर सिस्टम में आप लगाएंगे तो पहले साल में अगर 100 देगा, हर साल लगभग आधा 1% कम होते होते 25वें साल में आपको 80 और 80% परफॉर्मेंस फिर भी देगा। यहीं पे अगर
सोलर प्रोडक्ट खराब था या इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस खराब थी, तो ये डिग्रेडेशन 100 यूनिट से 5वें साल में 25 से 50% पे भी आ सकता है। तो बट वो बेस्ट सोलर सिस्टम भी हल्का हल्का डिग्रेड करता ही है। वो अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाता है, एंड इसीलिए उसका परफॉर्मेंस हर बार डिग्रेड करता है ईयरली। ओके नीरज, एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं प्रमोद जी से। ही इज आस्किंग, कैन वी इंस्टॉल सोलर सिस्टम ऑन tin roofing sheet so I can use my roof in rainy season? And does your team install tin shade before installing solar on your structure? टिन शेड सर लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो लगा सकते हैं वहां पे। हमारी एक्सपर्टीज ही है इन इन सोलर, सो वी कैन गेट द लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स, जिस भी शहर में है आसानी से लग जाता है। टिन शेड पे हम लोग सोलर लगाते हैं। बिल्कुल इंडस्ट्रीज में तो टिन शेड पे ही लगता है सोलर, सो वेरी मच डूएबल। एंड आई थिंक सिर्फ इम्पोर्टेंट ये होता है, टिन शेड के नीचे जो हमने सील का काम किया होता है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सोलर लगाएंगे उसके ऊपर और कभी आंधी तूफान आया, तो हमने कितनी Hmm. बार देखा है पतरा तो उड़ जाता है। टिन शेड साथ में वो सोलर भी लेके जाएगा। टिन शेड बहुत सस्ता होता है, सोलर ऊपर काफी महंगा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने उसकी स्ट्रेंथ सही से देखी है। बट ये टिन शेड पे लग जाता है आसानी से सोलर। Moving on, how much subsidy will we get on our rooftop solar? काफी questions भी आए हैं इसके ऊपर। तो नीरज। आई थिंक पिछले फरवरी में, इस लाइक 2024 में फरवरी में गवर्नमेंट ने सब्सिडी की स्कीम थोड़ी और इम्प्रूव की है। पहले 10 किलोवाट तक सब्सिडी मिलती थी। अभी क्या है, सोलर ना, मतलब वेरी जेन्युइनली ना, सोलर इतना अट्रैक्टिव है इकोनॉमिक्स। अगर अगर हमें 3 साल में 4 साल में अगर हमारा ब्रेक इवन आता है इन्वेस्टमेंट पे, और सिस्टम 25 साल चलने वाली है, एक्चुअली सब्सिडी की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट फिर भी एंकरेज कर रही है, वी आर ऑल्सो हैप्पी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो भी जिनके छोटे सोलर सिस्टम है उनको सब्सिडी ज्यादा कर दी है। बट मेजोरिटी ऑफ इंडिया 3 किलोवाट या उसके ऊपर ही लेता है, क्योंकि अगर आज आप 3 किलोवाट जितनी बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, आप लेके चलिए कि आप अगले 3 साल में लगभग 4 या 5 किलोवाट की बिजली आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे घर इलेक्ट्रीफाई हो रहे हैं और ज्यादा। अगर आपने घर में एक ईवी ले लिया, तो आपकी रिक्वायरमेंट ही लगभग 2 गुना हो जाती है। तो मेजोरिटी ऑफ इंडिया जो है वो 3 किलोवाट के ऊपर ही सोलर लेता है। एवरेज इंडिया का भी 3.5 4 किलोवाट है। सो 3 किलोवाट और उसके अबव जो भी सोलर सिस्टम है, उसकी सब्सिडी फिक्स्ड है 78,000 रुपीज। और ये इतना अच्छा प्रोग्राम, जैसे हमारी कोविन की ऐप थी ना कोविड के टाइम पे, बिल्कुल वैसा पोर्टल बनाया है गवर्नमेंट ने। हमने सोलर लगाया, हमारा सोलर चालू हो गया, उसके 1 महीने में हमें सब्सिडी आ जाती है हमारे कस्टमर की खुद के खाते में। एंड ये अभी पिछले, जब से यही अनाउंस है, पिछले 6 महीने में लगभग 2.5 लाख कस्टमर्स ने सब्सिडी का फायदा उठाया है। और इंडिया बहुत रैपिड पेस पे, हर महीने 50 से 70 हजार लोग सोलर जा रहे हैं। मैं इसको अगर एक अलग एंगल से बोलूँ ना, अगर सोलर सब्सिडी सोलर कंपनी को आती, तो फिर भी गवर्नमेंट थोड़ा आगे पीछे पेमेंट कर देती। बट ये तो ना गवर्नमेंट वोटर्स को पैसा दे रही है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करेगी, जो टाइम कमिट किया है वो देगी। और क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में ये काम ना अटक जाए, इसलिए प्रधानमंत्री ने खुद का चेहरा डाला है। इसीलिए उसको पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बोलिए कि यार आप लगाओ सोलर, आपको सब्सिडी मिलेगी ही मिलेगी। और जो मुफ्त वाला पार्ट है वो बहुत ही गरीबों के लिए है, क्योंकि उनकी बिजली का बिल भी कम होता है, उनकी सब्सिडी हायर रहती है। बट मतलब मुझे तो ये लगता है कि हमने 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की, उसमें अगर हमें 78-80 थाउजेंड अगर सब्सिडी मिल रही है, और हमारा बिजली का बिल 40-50 हजार है महीने का, हमारा ब्रेक इवन 4 साल का है, ऑन अ 25 ईयर एसेट। और आई डोंट नो यहाँ पे हमने कवर करे नहीं करे स्नेहा, आई नो हमने आगे दिखाया है। हम्म। बट अगर आपकी सोलर की सेविंग्स अगर आपके ईएमआई से कम है, Yeah. तो आप तो पहले दिन से पैसे बना रहे हो। स्नेहा ने आई थिंक बाद में रखा है, मैंने थोड़ा सरप्राइज Yes. पहले किल कर दिया। Yes, we'll move to that. Neeraj, बस एक actually this question, there's a lot of audience हमारी उत्तर प्रदेश से भी है, and ये एक्चुअली क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल्स में भी आता है कि स्टेट सब्सिडी, if you can sort of वेरी shed light on वेरी state वेरी subsidy, वेरी ये correct.
वेरी 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 गुड क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार एडिशनल सब्सिडी दे रही है। ये जो सब्सिडी 78,000 की है, ये सेंट्रल सब्सिडी है। उत्तर प्रदेश में क्योंकि पावर की, बिजली की चोरी बहुत होती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव निकाला है कि यार सभी सोलर जाइए, ये बिजली की चोरी का काम ही खत्म करो। तो उन्होंने घरों को इंसेंटिवाइज कर रखा है। 2 किलोवाट तक 30,000 और मिलेंगे। 2 किलोवाट के 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लिया है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से 78,000 और उत्तर प्रदेश में 30,000 और, तो 1,08,000 की आपको सब्सिडी मिलेगी उत्तर प्रदेश में। अभी कुछ और स्टेट सोच रहे हैं सब्सिडी लाएंगे, बट आई थिंक लंबा चौड़ा प्रोसेस। आई थिंक बाय द टाइम वी वेट फॉर इट, तब तक तो हमारी सेविंग्स ही उससे ज्यादा हो जाएंगी। आप एक साल में मतलब 50-60 हजार आप बचा लोगे, वो 20-25 हजार के लिए वेट करने के लिए। उत्तर प्रदेश में डे वन पे सिमिलर वो भी 30,000 जो है सीधा आपके खाते में आता है। वेरी वेरी गुड डिजिटल प्रोसेस। लाइक मतलब आई फील वेरी हैप्पी एज अ इंडियन सिटीजन। हमारी टेक्नोलॉजी, यूपीआई ऐप हो, आधार हो, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड गवर्नमेंट इज यूजिंग देम वेरी वेरी नाइसली। तो ये सब पैसा सही से महीने भर में आ जाता है। बीच में जो इलेक्शन का पीरियड था जहां पे एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हैं, तो जस्ट बिफोर इलेक्शंस गवर्नमेंट सरकार बनने के पहले ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार ने बहुत सारी सब्सिडी अलग अलग लोगों के खाते में भर दी तो फिर वो चीटिंग लगेगा। इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पीरियड में सब्सिडी डिसबर्सल बंद था। बट 4 तारीख को आई थिंक सरकार बनी, और 6 तारीख से डिसबर्सल फिर शुरू हो गए थे जून में। करेक्ट, करेक्ट। नीरज, आई थिंक हमारे कुछ कमर्शियल और सीएचएस की भी ऑडियंस है यहाँ पे। समवन ओके, इज आस्किंग सब्सिडी फॉर कमर्शियल। ये हमारे वेबिनार में वी हैव नॉट ऑफ कोर्स इंक्लूडेड दैट स्लाइड, बट अगर आप थोड़ा सा कमर्शियल और श्योर सीएचएस का भी थोड़ा बता दो तो। श्योर। सो कमर्शियल ऑर्डर्स के लिए कोई सब्सिडी नहीं है। एंड मैं बहुत ऑनेस्टली आपको रिक्वेस्ट करूंगा सर, आपने सब्सिडी का वेट भी नहीं करना चाहिए। घरों में तो बिजली फिर भी थोड़ी सस्ती होती है, कमर्शियल रेट्स तो बहुत ही हाई होते हैं। बिना सब्सिडी के ही आपका ब्रेक इवन 3-3.5 साल है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी कमर्शियल ऑर्डर्स के लिए हटा दी है। हाउसिंग सोसाइटीज के लिए बहुत ही अच्छी सब्सिडी है, 18,000 रुपए पर किलोवाट। मैं अगर मोटा मोटी आपको ट्रांसलेट करूं, दिस विल रफली आपका लगभग 30 से 40% आपकी इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के थ्रू नेट ऑफ हो जाएगी। तो इट्स अ, और ये नहीं थी पहले, ये बहुत ही कम थी। इसका आई थिंक प्रोबेबली सिर्फ 25% सब्सिडी मिल रही थी। सो 18,000 की जगह 7,000 पे थी। बट क्योंकि बड़े बड़े शहरों में भी सोसाइटीज है, तो उसको अट्रैक्टिव करने के लिए सब्सिडी बढ़ाई गई है। आई वुड ऑल्सो रिकमेंड, हमारा आई थिंक अगले वीकेंड या उसके एक वीकेंड में हाउसिंग सोसाइटीज के लिए भी एक सिमिलर वेबिनार होगा। क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज में थोड़ा सा अलग होता है, आपको सोसाइटी को सोलर ले जाना होता है, अप्रूवल्स का प्रोसेस अलग होता है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन दैट आल्सो। लीव इट टू स्नेहा। Yes, yes. Neeraj, someone has asked that why is your company not listed on PM Surya Ghar, the PM Surya Ghar website? We are actually, but Neeraj, if you could sort of, नहीं take नहीं, वी that आर, आई question. थिंक वो क्या Yes, है अभी क्यों सो वी आर लिस्टेड, वी आर नंबर 1 yeah, पैन इंडिया ऑल्सो। लेकिन क्योंकि पोर्टल बार बार रिफ्रेश हो रहा है ना, तो उसमें अभी भी थोड़े से ग्लिचेस हैं यहाँ पे सिलेक्शन के एंड पे। तो जब भी हमें हाईलाइट होता है तो विद इन द नेक्स्ट डे वो सिलेक्ट हो जाता है। आई correct. थिंक स्नेहा, आई डोंट मतलब मे बी वी कैन, आई थिंक जो भी इंडिविजुअल ने पूछा है, लेट्स सेंड देम दो स्क्रीनशॉट्स Yes, फॉर देयर मार्केट, है ना। हाँ, एंड the vendor list. Yes, of course. ये कहाँ से, किस मार्केट से, किस सिटी से आया है ये, अगर The आपको पता question. हो? या Uh, मैं, Suresh Maurya ji has asked. Suresh Maurya ji, अगर आप नहीं नो वरीज, नो you know, मतलब ठीक है, हम बाद में आप चेक कर लीजिएगा पीछे। बट मैं यहाँ पे गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा था कि कितना अच्छा पोर्टल बनाया है, और यहीं पे किसी ने टाइम फिश कर दिया। बट दिस दिस टेक ग्लिचेस है, वी आर रजिस्टर्ड पैन इंडिया। right, right. Okay. Moving on. I think the cost of your rooftop solar system. So many questions on it. या Neeraj, I know this is your favorite part as well, but yeah. सो काफी सस्पेंस बनाया स्नेहा ने। बट गोइंग सोलर कॉस्ट यू जीरो। एंड ये तो ऑब्वियसली थोड़ा ड्रामेटिक आंसर दे रहे हैं हम लोग, बट उसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है। आई थिंक सोलर हमने ईएमआई लेके जाना चाहिए। खुद के पैसे क्यों लगाए, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। आपकी जो भी डाउन पेमेंट है
वो हम सब्सिडी से ही पे कर सकते हैं। आपको शुरुआत में देना पड़ता है, बट विद इन अ मंथ आपको वो सब्सिडी आके आपका डाउन पेमेंट क्लियर होता है। एंड अगर आपकी ईएमआई, आपकी सेविंग्स अगर ज्यादा है आपके ईएमआई से, तो आपको पैसे लग ही रहे, उल्टा आप सेव कर रहे हैं हर महीने। तो इट डज नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग टू गो सोलर टुडे। आई थिंक जो कॉस्ट है वो तभी है कि अगर हमने घटिया सोलर लिया, मेंटेन नहीं किया, तो फिर हम जितना सोच रहे हैं कि अरे यार इतनी मेरी सेविंग्स आएंगी, वो नहीं आएंगी। जो खर्चे नहीं आने चाहिए वो खर्चे आने लग जाएंगे यहाँ पे, और फिर आपका पूरा इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स हिलने लग जाएगी। बट इट इज इनक्रेडिबल। आई थिंक पहले ना 2 साल पहले तक लोन्स भी नहीं मिलते थे आसानी से, आज आजकल लोन्स भी आसान हो गए हैं। कहीं पे डिजिटल है, कहीं पे ब्रांच में जाना पड़ता है, बट वेरी वेरी इजी, डज नॉट कॉस्ट। एंड इमेजिन दिस, ये गणित तो कोई भी दिखा सकता है, सोलर स्क्वायर इसके पीछे खड़ा होता है। मैंने आपको इतनी बिजली Yeah. बोली है ना, उसके हिसाब से आपकी सेविंग्स है। बिजली नहीं बनी, हम पैसे भर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि 1 महीने या 1 क्वार्टर या 1 साल के लिए। आपका लोन है 5 साल का, हम 5 साल तक भर रहे हैं। एंड जहां पे कोई कस्टमर 10 साल के लिए ऑप्ट करता है, हम 10 साल तक दे रहे हैं। सो आपके सर से वो रिस्क पूरी हटा ली। दैट वाज आर, लाइक वो हमारा कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज के लिए। बट स्नेहा, थोड़ी सी डांट आपको और मुझे पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि लोगों को इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी जाननी थी। आई थिंक व्हाट विल डू, क्योंकि हर शहर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, किलोवाट कैपेसिटी में डिफरेंस होता है। जिन्होंने भी चैट में लिखा है कि यार मुझे प्लीज प्राइस बता दीजिए, वी विल अरेंज अ कॉल विद इन अ डे टू एवरीवन। तो राइट, लेट्स डू दैट। राइट। नीरज, एक्चुअली जो काफी रेकरिंग क्वेश्चन है कि मोटा मोटा 3 to 4 किलोवाट का इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर इफ यू कैन गिव अ रेंज। श्योर। तो या मैं बहुत आसानी से दे सकता हूँ ये। रफली अगर आप 6 सोलर मॉड्यूल लगाएंगे तो 3.25 किलोवाट का सोलर लगता है। अ, बिना बिना मेंटेनेंस सर्विसेज के, बिना लोन के अगर हम लोग जाते हैं, ये रेंज करेगा लगभग 2 सवा 2 के आसपास। एंड विथ मेंटेनेंस लगभग 20,000 जो भी है उतना ऐड हो जाएगा। सोलर स्क्वायर की प्राइस पॉइंट शहर डिपेंडिंग किस सिटी में है उसके हिसाब से मोटा मोटी इतनी आएगी। अगर आपको सोलर स्क्वायर दोनों ऑफर देता है कस्टमर्स को कि आपको बिना मेंटेनेंस के या विद मेंटेनेंस आपको चाहिए। लगभग 90% कस्टमर्स ऑप्ट करते हैं, नहीं सॉरी, 96% कस्टमर्स ऑप्ट करते हैं या तो क्वार्टरली मेंटेनेंस, और ऑलमोस्ट 90% तो ऑप्ट करते हैं फॉर मंथली मेंटेनेंस, जो गुड जीरो प्रॉमिस है उसके लिए। एंड 3-4% कस्टमर्स होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं यार मेरे को मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, आप तो बस लगा दो। सो वो एक डिफरेंस रहेगा। बट अगर कहीं भी आपको 5-7% के ऊपर डिफरेंस मिलता है सोलर स्क्वायर से, प्लीज बी वेरी कॉन्शियस कि अरे यार यहाँ तो कुछ मक्कारी हो रही है। कुछ तो कॉर्नर्स कट हुए हैं। एंड आवर टीम हेल्प्स यू विद दैट कंपैरिजन। और बेस्ट पार्ट है, आपने ना 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे आप शोरूम में गाड़ियां चेक करने जाते हैं ना, एक बार आप सोलर सिस्टम अपने पास विजिट किए, सोलर स्क्वायर जिस भी शहर में ऑपरेट कर रहा है, वी कैन बेट दैट 1 मिनट के डिस्टेंस में आपके घर के पास में एक सोलर स्क्वायर का सिस्टम होगा ही होगा। विद इन अ मिनट और टू ऑफ योर होम यू विल फाइंड अ सोलर स्क्वायर सिस्टम। एंड थैंकफुली हमारे कस्टमर्स बहुत खुश हैं हमसे, एंड दे अलाउ कि आप बाकी लोगों पे लेके आइए, दिखाइए। यू शुड डेफिनेटली डू दैट। आपको तभी ही वो कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल आपको मिल पाएगा। एंड दैट्स वन थिंग दैट यू शुड डू। ओके, द लास्ट क्वेश्चन नीरज, एक सही सोलर पार्टनर चूज करने से पहले सम प्रो टिप टू आवर ऑडियंस टुडे। मैं ये हम बताते हैं कि हमने एक्चुअली ये पार्ट क्यों रखा है यहाँ पे। अभी क्या है, इतना इतना मोमेंटम आ गया है ना सोलर इंडस्ट्री में, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट का जो पुश है। और इसका सब्सिडी तो एक पार्ट है, बट गवर्नमेंट ने सोलर जाना भी आसान कर दिया, अप्रूवल्स आसान कर दिए। पहले जिस चीज में गवर्नमेंट का अप्रूवल आने में 50-60 दिन लगते थे, अब वो 15 से 30 दिन में आ जा रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारे, मतलब लोकल हार्डवेयर दुकान वाला कोई है, कोई पंप वाला बिजनेस है, कोई कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन है, कोई किसी दूसरे इंडस्ट्री का डीलर था, पाइप्स का डीलर था, ये सारे लोग अब सोलर इंडस्ट्री में आ गए। अरे ये तो ना सनराइज सेक्टर है, इसमें तो बूम हो रही है। अब ये बूम और सनराइज के नाम पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज भी शुरू हो गया। वो लोकली मार्केट से उठा उठा के लगाते हैं। नाउ देयर रेट्स आर सुपर अट्रैक्टिव, क्योंकि वो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।
तो उनको पता ही नहीं है लगाना क्या है। तो ऊपर से दिखता जो मोटा मोटी है क्या है, गूगल सर्च कर लिया एंड 4 घंटे में तो आप भी सोलर एक्सपर्ट बन गए। तो ये ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ, मतलब 4 गुना हो गए ऐसे लोग इंडस्ट्री में। एंड आई एम स्टिल थैंकफुल कि इनकी वजह से भी इंडिया सोलर जा रहा है। एंड और लोग आने चाहिए इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि यार सोलर स्क्वायर अकेला ही पूरा मार्केट खा जाए, यहाँ पे वो पॉसिबल भी नहीं है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कस्टमर्स टू नो कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। मतलब एक अगेन ये कई बार आए, कई लोग तो सोलर स्क्वायर के नाम पे ऑर्डर उठा लेते हैं और भाग जाते हैं। तो परसेंटेज कम है, बहुत लोग तो एडवांस लेके भाग जा रहे हैं इन जनरल। तो ये इन लोगों से बचे। आई थिंक उनका पुराना इंस्टॉलेशन अगर आप देखेंगे, आपने इतना पूछना चाहिए, अरे तुम्हारा 1 साल पुराना इंस्टॉलेशन बताओ। हम्म। मैक्सिमम लोग के पास में है ही नहीं। 80% इंडस्ट्री के पास में 1 साल की पुराना सोलर सिस्टम ही नहीं है। तो वो क्या ही मेंटेनेंस देगा और वो क्या ही वारंटी क्लेम करेगा। कल उठ के अगर वारंटी क्लेम आ गया, आपको लगता है कि मैन्युफैक्चरर इस कंपनी को सपोर्ट देगा? पॉसिबल ही नहीं है। एंड सो बहुत बहुत ही बेसिक चीज है। एंड गूगल रेटिंग चेक कर लीजिए। अभी बहुत लोग को लगता है कि यार गूगल रेटिंग तो फर्जीवाड़ा भी हो सकता है, चीटिंग भी करी जा सकती है। मैं तो श्योर हूँ हमारे 4,000 रिव्यूज, उसमें से 10-25 तो हमारे भी कुछ फर्जीवाड़ा होंगे। बट आपको, आप जब हमारे गूगल रेटिंग का रिव्यूज पढ़ेंगे, आपको वो सिंसियरिटी दिखेगी कि कस्टमर ने यार अपने इमोशन से लिखा है वो। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। एंड यहाँ पे हाउस सर्विस का लिखा हुआ है। आई थिंक आसपास में जस्ट मतलब लोगों से पूछ पाछ के, आई थिंक बहुत ही रेपुटेशन वाला गेम है, 2.5 लाख की चीज है। आप 4 लोगों से पूछे, रिसर्च करें। सोलर स्क्वायर के पास में बहुत सारा कंटेंट है ऑनलाइन। ये हम लोग सोलर स्क्वायर के अलावा भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे अवेयरनेस और बढ़ा पाए अच्छे सोलर की। इंडिया सोलर तो जा रहा है। आई थिंक अभी क्योंकि इतना पुश है तो क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आया है। एंड होपफुली गवर्नमेंट इसको चेक लगाए जल्दी। बट बट या प्लीज बी वेयर, क्योंकि आपके लिए भी, आपके फैमिली के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट है। 2.5-3 लाख छोटी बात नहीं है। सो Correct. I just want to add to this. I think if anyone sort of wants to visit our previous our past customers solar installations, we are also doing that currently. बहुत सारे sales team हमारे before they sort of before the customer goes solar, the sales team is taking the customers to our existing customers plants and homes, and to show that how we have done it. So that is also a possibility, and like an opportunity that we are providing to all our customers. yeah. Yeah. Neeraj, I think we'll spend some minutes answering a lot of questions that have come in today. Neeraj, a lot of people are asking that are we operating at Bhiwadi, Rajasthan, and someone has also asked that are we operating in Hyderabad? सो वी आर इन हैदराबाद। हम लोग भिवाड़ी में नहीं है, भिवाड़ी राजस्थान में है। दिस इज क्लोज टू द एनसीआर रीजन। बट ओपन कर रहे हैं, इट्स गोना टेक अस प्रॉब्ली अबाउट अ ईयर भिवाड़ी में आने के लिए। बट हैदराबाद में तो हम लोग हैं सर ऑलमोस्ट 4 साल से। मतलब माय सोलर स्क्वायर ओल्डेस्ट इंस्टॉलेशन इज फ्रॉम 2016 इन हैदराबाद। तो फोरम सुजना मॉल जो है सर, वहां पे हमने ही सोलर लगाया है हैदराबाद में। So we are very active. We are number one in Hyderabad also. Okay. Uh, AB is asking that electric meter connection is mandatory for installation of solar system. Yes. आप घरों पे अगर लगा रहे हैं तो सोलर इंस्टॉलेशन दैट वी आर डूइंग, इंडस्ट्रीज में अलग होता है। बट घरों के लिए तो आपको नेट मीटरिंग जरूरी है। एंड इलेक्ट्रिक मीटर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर इट, लाइक नेसेसरी है। Okay. If Vijendra ji is asking, if I purchase solar from a company which has solar panels, uh, solar inverter और installation का फिर कैसे करना है? सो ट्रिकी क्वेश्चन है। लेट मी आंसर इट वेरी ऑनेस्टली। एंड मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली इनकरेक्ट हूँ। माय टीम फील्स दैट्स अ रिस्क, बट आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट। जो भी मॉडल मैन्युफैक्चरर भी है सर, उनके जो डीलर होते हैं, मैन्युफैक्चरर उनको सिर्फ ये मटेरियल दे देता है एंड दे विल से क्वालिटी कंट्रोल और सब हम कर रहे हैं। बट इफ यू आस्क देम फॉर वारंटी सपोर्ट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड वारंटी वो नहीं मिलती। वो कंपनी, अभी क्या है, सोलर इंडस्ट्री बूम कर रही है तो
मटेरियल प्रोवाइड करने वाले बहुत हो गए, इन्वर्टर की कंपनीज खुल गई हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर हर चीज के बन चुके हैं। तो मटेरियल तो मिल जाता है, आई डोंट थिंक मटेरियल की शॉर्टेज है। द प्रॉब्लम इज वारंटी सपोर्ट एंड नो क्वेश्चंस आस्क्ड वारंटी। तो अगेन आई डू नॉट वांट टू स्पीक इल अबाउट द इंडस्ट्री, अच्छे भी लोग हैं इंडस्ट्री में, इंटेंट सही, आई थिंक कोई भी जानबूझ के मक्कारी नहीं कर रहा था, वो थोड़े से ही प्लेयर्स हैं, उतने तो कस्टमर स्मार्ट होते हैं समझने में। बट आई थिंक वारंटी सपोर्ट नहीं मिलता डिस्पाइट बेस्ट इंटेंशन, बिकॉज लूप होल्स बहुत है। मैन्युफैक्चरर आपको वारंटी देगा नहीं बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन उसने नहीं किया, मेंटेनेंस उसने नहीं किया, और इंस्टॉलर आपके स्कोप में डाल देता है, क्योंकि अभी अवेयरनेस नहीं है। आज भी अब सोलर स्क्वायर को 4 साल हो गए हैं रेसिडेंशियल सोलर में, घरों पे लगाते लगाते, अभी तक एक और कंपनी नहीं आई है जो ये मेंटेनेंस अपने सर पे ले, बिकॉज बहुत ही हेडेक है। जब तक आपने अर्बन कंपनी जैसा टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, आपने आपने वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया है आपके कैपेबिलिटीज में, आप कहाँ से, आप सोचिए ना, मुझे रियल टाइम में प्लांट सोलर सिस्टम मॉनिटर कैसे करूंगा? वो लोकल कंपनी जो होती है उसमें तो लोग ही 4 होते हैं, एक प्रमोटर होता है, 3-4 छोटे छोटे यंग बंदे होंगे उसके टीम में। कहाँ से डिजाइन इंजीनियरिंग करेंगे, कहाँ से मेंटेनेंस करेंगे, कहाँ से क्वालिटी कंट्रोल करेंगे? तो सोलर लगाना बहुत आसान है, और इसलिए इतने सारे लोग इंडस्ट्री में आ जाते हैं। सही सोलर लगाना और उसको मेंटेन करना और गारंटी देना वेरी वेरी ट्रिकी टुडे। करेक्ट। वीरेंद्र जी इज आस्किंग, इन्वर्टर कौन सी कंपनी का लगाते हैं हम? हम लोग 3 कंपनीज का लगाते हैं, जो सो 2 जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं। एक है हर एक सोलर मॉड्यूल पे एक एक इन्वर्टर लगता है, वो एक्सपेंसिव साइड पे है। वो हम एनफेज करके यूएस की नंबर 1 कंपनी है, ग्लोबली नंबर 1 कंपनी है इस टेक्नोलॉजी में, हम उसका लगाते हैं। वी आर द लार्जेस्ट यूजर्स इन इंडिया, एंड ग्लोबली जो नंबर 1 इन्वर्टर कंपनी है सनग्रो करके, चाइनीज है, बट देयर एंटायर मैन्युफैक्चरिंग फॉर इंडिया इज विद इन इंडिया, बैंगलोर में है। लगभग 20% मार्केट शेयर है उनका ग्लोबली। इंडिया में तो आई थिंक जो बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं गवर्नमेंट के, उसमें तो 80% मार्केट शेयर है। तो वी यूज सनग्रो इन्वर्टर्स फॉर दैट। थैंक यू नीरज। नीरज, बहुत सारे क्वेश्चंस अजय जी से, सीमा जी से, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर 10 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम कॉस्ट। तो अगर आप अगेन एक मोटा मोटा रेंज अगर दे दोगे, आई थिंक we'll sort of immediately answer this question for them. ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी लगभग 6-6.5 के बीच में जाना चाहिए, बट इट इज वेरी साइट स्पेसिफिक। एंड क्या होता है ना, वो 10 किलोवाट के ऊपर आई थिंक सम कस्टमर्स आल्सो कंसिडर के हम हम सब्सिडी वाले मॉड्यूल्स ना लें। सो सो लेट मी नॉट कमेंट, यहाँ पे वो बहुत ही साइट स्पेसिफिक है। बट अगर 4-5 लोग भी है, इफ दे कैन शेयर देयर नंबर्स, वी कैन Yeah. रीच आउट टू देम विद इन लाइक टुडे इटसेल्फ एंड क्लोज आउट दीज क्वेरीज। Yes. आई Yes. वुड जस्ट रेकमेंड, आप डेफिनेटली 6-7 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप प्लीज सिर्फ सिर्फ रेट पे मत जाइए। आई थिंक प्लीज डू टेक दैट टाइम, हाफ एन आवर, टू स्पीक टू आवर टीम, एंड वील रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। Yes. Yes. Sachin ji is actually an existing customer of Solar Square, and he says, "Sir, I have been benefiting from Solar Square plant since 2021. Shall I add some more panels vertically on my west side wall for additional productivity?" सर अगर आपने 2021 में लगाया तो आप मध्य प्रदेश में होंगे मोस्टली। आई डोंट थिंक अभी जो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स है मध्य प्रदेश के, उसका आरओआई जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि आपकी जनरेशन जो है वो आधी हो जाएगी वेस्ट में लगा के। सो मतलब आपका वही ब्रेक इवन आपका लगभग 6-7 साल का हो जाएगा। आई थिंक 1 साल और वेट कर सकते हैं प्रोबेबली, थोड़ा बिजली के ठीक रेट है। जब महंगे होंगे तब सेंस बनाएगा। बट अगर आपके छत पे जगह नहीं है, आई एम सरप्राइज, आप प्लीज सर अगर आपका नंबर शेयर कर देंगे या एसएससी आईडी शेयर कर देंगे, वी विल रीच आउट टू यू टुडे इटसेल्फ, क्लोज दिस क्वेरी। एंड माफी चाहूंगा सर, आपको इस कॉल पे आना पड़ा हमें ये बताने के लिए। आवर टीम शुड हैव ऑलरेडी बीन इन टच विथ यू। एक 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 पूछते हैं सचिन जी को, सचिन जी हर क्वार्टर मेरी टीम मोटा मोटी आ रही है, नहीं आ रही है मेंटेनेंस के लिए? आई डोंट थिंक हिज आंसर विल बी विजिबल टू पीपल, बट आ No, रहे होंगे, आ रहे Sachin ji, होंगे। you can use the same Q&A box to sort of, to answer this question if you're still on the call. नो But वरी, ठीक है. ठीक है, आगे चलते But हैं।
Yes, moving on. Mohammed Ji has asked, how about NRI user? Do they still get subsidy for his Indian family? अगर आपके पास में आधार कार्ड है, आपका बिजली का बिल जिसके भी नाम पे, उनके अकाउंट में मिल जाएगी सब्सिडी. Okay. Someone has asked, can we purchase popcorn panel ourselves? Will you provide EPC? Yeah, we can install, sir, but we will not be able to give performance guarantees. मैं टेक्निकल सा ही टॉपिक है सर, बट आई आंसर इट. टॉपकॉन टेक्नोलॉजी मास मैन्युफैक्चरिंग में अभी आई है इंडिया में. इट इज नॉट स्टेबल, एंड डिग्रेडेशन जो है, जो हर साल आधा 1% का होना चाहिए, उससे कई ज्यादा हो रहा है. सो जब तक ये टेक्नोलॉजी स्टेबलाइज नहीं होती, वी विल नॉट बी गिविंग अ परफॉर्मेंस गारंटी बेस्ड ऑन दैट. सो एंड इट इज इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर जो बना रहे हैं. बट आप अगर न्यूज सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि उन्होंने बीच में प्रोडक्शन शट डाउन कर दिया था बिकॉज ऑफ क्वालिटी इश्यूज. But yeah, we're happy to. आप सोलर जा रहे हैं, sir. It is our job to support you. We can definitely install and maintain. Just not be able to give service performance guarantee on that. Okay. Thank you, Neeraj. Ajay Ji is asking how the extra units are sold out and how the money is credited to our account. Okay. So एक्स्ट्रा यूनिट्स है, तो आप नेट मीटरिंग के बारे में पूछ रहे हैं. Yeah. सो अगर अगर 5,000 यूनिट सोलर ने बनाए हैं और हमने डे टाइम में सिर्फ 3,000 यूनिट ही कंज्यूम किए हैं साल में, तो जो 2,000 यूनिट है, दैट विल शो एज एन एक्सपोर्ट ऑन द मीटर. और ये जो मीटर में एक्सपोर्ट गया है, आप दिन में सोलर बना रहा है पावर, आपने एक्सपोर्ट कर दिया एक्स्ट्रा पावर, आपने रात में जो पावर कंज्यूम की, आपने पूरे साल में जो पावर कंज्यूम की, अगर वो इससे कम है, तो क्या आपने सिर्फ 1,000 यूनिट और कंज्यूम किए, तो आपको बैलेंस अगर बच गया तो गवर्नमेंट आपको सेटल करेगी. बट मोस्टली आपने सोलर सिस्टम ऐसे ही डिजाइन करनी चाहिए कि आपका बिल जीरो आता है. आपने एक्सेस सोलर नहीं लगाना चाहिए. प्रॉब्ली 10-15% आप एक्स्ट्रा सोलर लगा दे, दैट इज सेंसिबल, क्योंकि आपकी बिजली का कंजम्पशन बढ़ता रहेगा ओवर टाइम. बट बहुत ज्यादा, मतलब आपके छत पे आपको 3 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, आप 4 किलोवाट लगा दीजिए. पर अगर आप 6 किलोवाट लगा रहे हैं, आपको आरओआई नहीं आएगा, बिकॉज गवर्नमेंट आपको वैसे ही इतनी सुविधा और इतने इंसेंटिव दे रही है. द गवर्नमेंट डज नॉट पे यू अ लॉट ऑफ अमाउंट फॉर एक्सेस पावर. नेट मीटरिंग कर देते हैं, बट आपको उस साल तो आपको पावर यूज करनी ही पड़ेगी, वरना गवर्नमेंट आपको 9 रुपए की जगह 3 रुपए पे वो एक्सेस पावर सेटल करती है. आरओआई डज नॉट मेक सेंस. Rohit Ji is asking, are solar panel recyclable? Does solar panel has policy of buyback after the end of solar panel life? Yeah, so recyclable है, but that industry is not very prevalent in India today. I think जैसे इंडस्ट्री का साइज भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी थोड़े से आएंगे, तो रिसाइकलिंग के भी सेटअप है. they'll be put up. I think again, if we buy good solar, that problem is 10 years, 25 years away. तब तक definitely we expect a lot of recycling capacity to be in India. Okay. Someone is asking, is there a specific subsidy for farmers if they want to go solar? There is, but we do not operate in that segment, so I'm not an expert. I will not be able to comment. There is a separate subsidy for farmers, a separate program ही है farmers के लिए. जी. We are the Manish, experts for individual homes and housing societies and rooftops. That's what we are best at. uh, कोई पूछा सोलर रेनी मॉनसून सीजन में लगा सकते हैं क्या? आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, उस टाइम पे सोलर की परफॉर्मेंस भी आती है. वो शायद से 30 या 60%, 40-60% पे परफॉर्म करेगी, जो समर्स में परफॉर्म करने वाली है. इसलिए आप जब भी देखेंगे, हम सोलर की परफॉर्मेंस एनुअल लेवल पे बात करते हैं. ठंड में थोड़ा करेगी बिजली, नॉर्मल करेगी, लेट्स से समर्स में ज्यादा करेगी, मानसून में थोड़ा कम करेगी. बट वो चीजें एवरेज आउट हो जाती है. डेली बेसिस पे सोलर का परफॉर्मेंस ट्रैक करना वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव. एनुअल लेवल पे ही देखते हैं, ग्लोबली भी एनुअल लेवल पे ही देखते हैं परफॉर्मेंस. Okay. Ganesh ji is asking that are you available in rural side of Pune? And I think ये महाराष्ट्र का भी question था. या The person, yeah.
So I think mostly the rural side, and I think अगर पिन कोड्स हमको दे दे सर अगर आप पिन कोड शेयर कर देंगे ना, वी विल रीच आउट, या पिन कोड और फोन नंबर शेयर कर दीजिएगा, वी विल रीच आउट टू यू। वी आर वेयर इन ऑल ऑफ महाराष्ट्र। correct, correct. Mahesh is asking what is the optimal water pressure for module cleaning? It changes from module to module, sir, and roof to roof. But very specific questions, sir. I think अगर आप सोलर ऑलरेडी जा चुके हैं, तो you will have it in the data sheet. But different water pressures are recommended for different modules manufacturers के हिसाब से. And exactly, thank you for asking this question. कितने customers को पता है कि वाटर Exactly. प्रेशर भी इफेक्ट मतलब अगर आपने ज्यादा प्रेशर लगा दी तो मॉड्यूल की वारंटी वॉइड है। एंड आपने क्या यूज किया नहीं किया, उससे क्रैक आया नहीं आया, मैन्युफैक्चरर तो बोल ही देगा कि नहीं देखो आपने यूज किया होगा, हमें नहीं पता। तो थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन सर, एंड आई होप ये हमारी टीम से कोई नहीं था जो पूछ रहा है। नहीं नहीं, no no no. um नीरज, एक एक्चुअली कस्टमर का कंप्लेन है, but let's take it श्योर। publicly. He's saying the price difference is very high between Solar Square and other solar company installation. It is almost a delta of 60,000 to 70,000. So ऑन व्हाट किलोवाट why? कैपेसिटी? He has not mentioned that. श्योर। सो मैं कंपेयर कर रहा हूँ सर, जो हमारा सिर्फ प्रोडक्ट वाली ऑफरिंग है हम उसको सोलर स्क्वायर ब्लू बोलते हैं, और जो गुड जीरो ऑफरिंग है उसमें मैं अगर 3 किलोवाट का कंपैरिजन लूं, लगभग 20 से 25 हजार का डिफरेंस तो वहीं पर आएगा। उसके आगे आई थिंक अगर आप बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 30,000 का गैप क्या है, आई एम 100% सर्टन, मैं आज इस कॉल पे बेट लगाने को तैयार हूँ, गारंटी लगाने को तैयार हूँ कि आपको बहुत कॉम्प्रोमाइजेस मिलेंगे। आई थिंक व्हाट हम जो एक अपने क्वालिटी का प्राइस प्रीमियम लेके चलते हैं, वी डू प्राइस इन अबाउट 5 to 7% प्रीमियम। सो मेरे सिर्फ अगर एसएससी ब्लू जो हमारा प्रोडक्ट वाली ऑफरिंग है वहां से 5-7% का, सो ऑन अ 2-2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 10 से 15 हजार का प्रीमियम वी नो वी कमांड फॉर आवर वर्क एंड आवर क्वालिटी। उसके बियॉन्ड हमें भी नहीं करना, बिकॉज हमें सोलर फालतू में महंगा नहीं करना वहां पे। बट इसके बियॉन्ड अगर प्राइस डिफरेंस आता है, इट इज क्लियर कॉर्नर्स बीइंग कट। जैसे कि मैं आपको आई थिंक कॉल की शुरुआत में ही बोला था कि जो सोलर मॉड्यूल लगा रहे हैं वो सेकेंड हैंड मॉड्यूल है क्या, वो रिजेक्टेड मटेरियल है क्या, वो नॉन सब्सिडी वाला मॉड्यूल है क्या, जिसमें बाद में कल लायबिलिटी आप पे आ जाए, आपको कैसे पता सेकेंड हैंड मटेरियल यूज हो रहा है, क्या स्टील का किस ग्रेड का यूज हो रहा है। लोग लोग स्क्रैप मेटल वाला स्टील यूज करते हैं, कबाड़ी से लेके उसके पाइप्स बनते हैं, उसके बाकी कंपोनेंट्स बनते हैं, उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं होती। अगर कोई भी टेक्निकल इस कॉल पे जानेगा, उसकी स्ट्रेंथ होती है 200 150 से 210 एमपीए। द स्टील दैट सोलर स्क्वायर यूजेस इज ऑफ 550 एमपीए, पौने 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट विल कम एट अ प्रीमियम, बट उसी वजह से फिर हम ये गारंटी दे पाते हैं कि वो 25 साल चलेगा, टिकेगा। आ, इतना प्राइस डिफरेंस पॉसिबल नहीं है unless and until there are corners being cut, but there will always be a 5 to 7% premium that solar square will command for its quality, because हम लोग हर एक कंपोनेंट में इतना जाके क्वालिटी कॉन्शियस रहते हैं। इट इज जस्ट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू कस्टमर्स कि मैं एक नट बोल्ट के बारे में बोलूं। अब मैं अगर क्वालिटी चेक के लिए लोग भेज रहा हूं, देयर विल बी अ कॉस्ट टू इट। इट इज डिफिकल्ट टू प्रॉब्ली लाइक मैं तो टेक्निकली एक्सप्लेन कर दूं, कस्टमर ही सैचुरेट रहेगा कि यार मैं थोड़ा ना मतलब पीएचडी शादी करने थोड़ी ना आया हूं मैं जो इतने सवाल पूछूंगा। तुम तो अपना बेस्ट पॉसिबल लगा दो। एंड देर आर कस्टमर्स एट ऑल प्राइस पॉइंट्स, देर आर कंपनीज एट ऑल प्राइस पॉइंट्स, बट वेरी हैप्पी टू टेक दैट चैलेंज सर। मैं तो मतलब मेरी टीम हेजिटेट करती है, मैं तो कल भी स्नेहा को बोल रहा था, मैं तो प्राइस इतनी क्वालिटी का बोलने का भी लोगों को लगा बहुत महंगा है, मैं तो प्राइस मैच चैलेंज खेलता हूं। अगर 5-7% प्राइस डिफरेंस के बियॉन्ड अगर है, मैं फ्री में लगाने को तैयार हूँ। दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड इस कॉल पे अगर 60-70 लोग अभी भी हैं, यू कैन कोट मी कि नीरज ने इस वेबिनार में बोला था 5-7% के ऊपर का डिफरेंस अगर एप्पल टू एप्पल निकला, सोलर स्क्वायर फ्री में लगाएगा सोलर। नीरज, श्रीकांत जी का हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. ही इज आस्किंग ऑन एन एवरेज हाउ सॉरी सॉरी मेनी. सॉरी 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 स्नेहा, एंड इसीलिए हमने बोला था कि सोलर स्क्वायर डज नॉट नेगोशिएट। ऐसा नहीं है कि करेक्ट, मेरी टीम करेक्ट. से कोई भी सेल्स का इंडिविजुअल आएगा
तो वो अपनी नेगोशिएशन एबिलिटी के हिसाब से प्राइस रख रहा है। यू वी डोंट नेगोशिएट विद आवर कस्टमर, बहुत ही टाइट रेंज में डिपेंडिंग ऑन द रूफ हम बदलते हैं, बट यू कैन बी एंश्योर्ड, मतलब आप नाइकी के शोरूम में जाके नाइकी से नेगोशिएट नहीं करते। नाइकी ऑल्सो हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल, कि हम ऐसा नहीं है कि हम ठग रहे हैं, बिकॉज मेरी टीम में आज 100 सेल्स के बंदे हैं, कल शायद से 200 होंगे, कहीं ना कहीं चीटिंग पॉसिबल होती है। सो फॉर अस इट इज वेरी वेरी स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच टू कस्टमर डिस्कशंस। Great, great. Thanks, Neeraj. Shrikant ji पूछ रहे that on an average, how many units produced by solar panels for 5 kilowatt in Lucknow? And there's a follow-up question that, and will you provide quotations or average expenditure for installation of that 5 kilowatt? सो इंस्टॉलेशन कॉस्ट यहाँ सेपरेटली आई थिंक वन ऑन वन वी कैन आंसर, Yes. आपका नंबर रहेगा। जनरेशन जो होगा लखनऊ में, क्योंकि विंटर्स में थोड़ा कोहरा आता है, इट इज स्लाइटली लेसर देन प्रॉब्ली लेट्स से पुणे और बैंगलोर, बट आई थिंक वी डू गारंटी अबाउट 1300 से 1350 यूनिट। सो 5 किलोवाट के लिए इट शुड बी 6500 टू 6700, लाइक 6500 से पौने 7000 के बीच में यूनिट्स गारंटी होंगे। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से 3 से 5% का जो भी है, कम से कम आपको हायर परफॉर्मेंस आना चाहिए। दिस वी गारंटी ऑन अ एनुअल बेसिस। Okay. Okay. I think we'll just take one last question, Neeraj. Someone has asked, what are the brands that we used for solar modules? सर आई वुड नॉट वांट टू, मैं एक मैन्युफैक्चरर को दूसरे के ऊपर अगर रेकमेंड करूंगा वुड बी बैड। व्हाट सोलर स्क्वायर डज, we work with 2-3 manufacturers and we get our own modules made। तो वो सेम मैन्युफैक्चरर के यहाँ पे आपको डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ मटेरियल मिल जाएंगे। इंटेंट सबका अच्छा है, बट मैन्युफैक्चरिंग इज नो साइंस। अलग अलग ग्रेड का मटेरियल बनता ही है, हर प्राइस पॉइंट पे कस्टमर्स है। तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर की ब्रांड पे जाके भी इनफ नहीं है। वी विजिट दोज फैक्ट्रीज एंड आपको डिफरेंट कस्टमर्स के लिए डिफरेंट मटेरियल मिलता ही मिलता है, क्योंकि इतने सारे अलग अलग रॉ मटेरियल होते हैं। हाँ, एक रिटेल कस्टमर कैसे समझ सकता है कि क्या पीछे इंजीनियरिंग हो रही है नहीं हो रही है। इसलिए मतलब क्या बोलते हैं, इट इज द ब्रांड। एज अ कंज्यूमर आपके लिए ब्रांड मैं हूं, मॉड्यूल किसका भी हो पूरी जिम्मेदारी हमारे सर पे होती है। कल उठ के वो मैन्युफैक्चरर ने वारंटी वॉइड भी कर दी, सोलर स्क्वायर अपने पैसे पे करता है। सो हमारे केस में ये होता है, अगर कुछ भी परफॉर्मेंस इश्यू आया, मैन्युफैक्चरर का क्लेम डालने के पहले भी हम आके रिप्लेस करेंगे, सर आपका परफॉर्मेंस अफेक्ट ना हो। जो भी शॉर्टफॉल आया उसके लिए हम आपको पैसे देंगे, बैकग्राउंड में हम मैन्युफैक्चरर से लड़ेंगे। I'm actually there's a live review that has come, and I'm just trying to figure out how can I sort of show that review to everyone on the call. Um, आप स्क्रीन शेयर कर दो आपका जो भी। yeah. I'm gonna just like share the entire screen, but Q&A दिख रहा है क्या? Q&A नहीं दिख रहा ना फिर भी? नहीं, क्यों नहीं Yeah, दिख रहा है। I think Zoom does not allow, but I'll just read it out. Thanks, sir, for answering my question. He lives in Panchavati, Bhopal, Madhya Pradesh. And he writes, I remember you personally visited our home during COVID time, and we had a great interaction with you. We are getting very good results, especially my father is very happy with you and satisfied, and we are proud of your initiative during that time. And my maintenance is happening regularly. I think this is Sachin ji. I think when he rejoined, शायद anonymous पे जा रहे सचिन जी आप ऑल इंडिया रेडियो में काम करते हैं क्या? हैं। नहीं, आई रिमेम्बर दिस वाज माय फर्स्ट विजिट एंड अरे आई एम जस्ट सो ग्लैड सचिन जी इज हियर, so good to be interacting with you again, sir. Yes, and he actually has a question for a new customer, not for himself, where he is Yeah. asking that are the panels safe from monkeys and crackers? Monkeys and crackers, firecrackers. I think so. That's what he meant. आई डोंट थिंक फायर क्रैकर्स में इशू है। Uh-huh. मंकीज का मतलब बंदर प्रूफ नहीं है हमारा, बट आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कि मंदिर मंदिर बैठ जाए सोलर मॉडल में कोई दिक्कत नहीं आती, उनका वेट तो झेल लेके। आई थिंक जो केबल्स होती है ना, केबल्स को लटकते नहीं छोड़ना चाहिए। आई थिंक छोटी छोटी फिनिशिंग है, मतलब ये सिर्फ 100 रुपए का खर्चा होता है 2.5 लाख में से, बट लोग केबल्स को लटकता छोड़ देते हैं।
और यहाँ पे बर्ड्स आके बैठ जाते हैं, उसमें फिर वो क्रैक्स आने लगते हैं, बंदर खींचते हैं। और आप सोचिए 1000 वोल्ट का कनेक्शन आपके घर पे बंदर खींच रहा है, और कभी आप या आपका बच्चा, आपकी फैमिली वो छत पे चलेगा, और आप मतलब फिंगर्स क्रॉस कोई सेफ्टी इंसिडेंट ना हो। बट ये छोटी छोटी चीजें, 100 रुपए आप ऐसा ऐड करते हैं ना, वो 5-6 हजार ऐसे ही हो जाता है हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान देते हुए। बट दैट इज द अटेंशन टू डिटेल दैट वी ब्रिंग टू द टेबल। वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब क्या होता है ना, कुछ लोग को आप कभी भी समझाए नहीं समझेंगे, और कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मुझे तो ना आप अच्छा, मतलब फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके दो। सो आई थिंक वो नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है बिटवीन अ कंपनी एंड अ कस्टमर, जहाँ पे मेंटालिटी मैच होती है, यू शेक हैंड्स। Correct, correct. Last question, Neeraj. Do we have 1 kilowatt or 2 kilowatt solar inverter for three-phase supply? If yes, then what's the नो वी approximate डोंट, cost? नो वी डोंट। Okay, okay. And are we serviceable in Faridabad, Haryana? We should be in a month or two. I think अगर if you have the phone number, uh, we can क्या बोलते हैं, बोनी वहीं से करेंगे। Okay, great. Great. I think we have answered most of the questions, Neeraj. I think this was great, great webinar. A lot of questions answered. Um, please get in touch with us. I'll just share my screen again. The number is on the screen right now. Call us at 983000. In fact, all our social media channels are also open, and we regularly monitor our channels. Our teams constantly answer any question, grievances, everything. So we are on top of that. So please, if you don't follow us over here, please use our social media channels, our Instagram, Facebook, YouTube, to send us your queries, and we will get back to you within 24 to 48 hours. मुझे एक ही चीज शेयर करें, पीपल हु आर ऑन द कॉल हियर, Yeah, वी आर नॉट अ परफेक्ट कंपनी। हम लाइक, हम इंडस्ट्री में भले नंबर वन रहेंगे, बट हम भी कम पड़ते हैं कहीं पे कस्टमर एक्सपीरियंस में, कहीं पे कम्युनिकेशन में। प्लीज डू गिव अस अ चांस। आई थिंक अगर हमारी टीम रिस्पॉन्ड नहीं करती वापस से, प्लीज रीच आउट एज मेनी फोरम आप कर सकते हैं, एंड वी विल मेक श्योर के जो भी कम्युनिकेशन अगर गैप रहता है, इफ यू गो फर्दर विद अस, आपका प्लांट हमारा है। वी आर नॉट परफेक्ट, गलतियां होंगी बीच में, प्लीज आई थिंक इंटेंट में कमी आपको कहीं नहीं मिलेगी। एंड या, दैट्स इट। thank you so much, Neeraj. Thank you, everyone. There's a lot of people who have stayed back. Thank you for आई staying back. आई एम हैप्पी टू स्टे बैक अगर क्वेश्चंस और हैं स्नेहा। We have covered most of the questions. A lot of the questions are very similar. So I've gone through all the questions. So we have covered it, Done. right? Thanks, Neeraj. Thank you, Neeraj, for your time. Thank you, Shania, Munish, whoever is on the call right now. Thank you. We'll see थैंक यू, you आप in लोग ने another अपना two समय weeks. निकाला। थैंक यू। Yes. Thank you. Bye.